And before starting, I just want to know your opinion. See, this is a relatively newer subject. अगर आप बाकी subjects के साथ compare करें, this merely started around the later 17th century. तो अगर आप बाकी school of thoughts के साथ compare करेंगे तो ये काफ़ी नया है, पर मेरा मानना ऐसा नहीं है. I personally believe that even if we go way beyond the 8th century, the 7th century, or even if we go मतलब वो warfare वाला time पर, armies still had to consider how much stock they had. Kings had to still make provisions for food for everyone. मेरे को नहीं लगता कि हिसाब करना बहुत recent phenomena हुआ होगा. Every single survival instinct teaches us how to be accountable to everything. So this subject is maybe given a name very recently, but this existed way before. It's like gravity. Just because Mr. Edison noticed something falling on his head and he called it gravity, does not mean इससे पहले नहीं था, है ना? एडिसन नहीं, न्यूटन था ना? सॉरी, मेरा साइंस खराब है. तो gravity existed even before Mr. Newton observed it, है ना? मतलब it was there way before. We just named it. Naming it is not an invention. It was maybe a discovery that अपने को दिखा, but otherwise it existed before time immemorable, है ना? उससे मतलब till existence has happened, gravity was there. Similarly, जब तक लोग झुंड में रहे हैं, ग्रुप्स में रहे हैं, ट्राइब्स में रहे हैं, खाने का हिसाब, कौन कितना क्या चीज़ कर रहा है, somebody has been always been a part of it. Like I will be giving you a lot of movie and TV series का referencing. हाँ, anybody's watched Game of Thrones? Game of Thrones में ना मतलब ancient civilization के बारे में है, जहाँ dragons के बारे में मतलब थोड़ा supernatural है. And उसके अंदर एक kingdom में there is a person called Master of Coin. You know, guess what the Master of Coin is? He's basically an accountant. He will understand, or he will see what the needs of the kingdoms are financially and spend accordingly. If they need to borrow, they'll borrow from other kingdoms. If they need to spend on some event, they will have to spend on some event, etc., etc. My point being that just naming it into a subject does not mean that it did not exist before than that. So first believe this, that this is something that has been there even before we named it. Secondly, how many of you, अच्छा, anyone from MPV? Sir, this is not how we conduct the classes, Rahul. If you have a doubt, only then you will be texting. Otherwise, you cannot text like this. This is not how I conduct my classes. So please maintain certain decorum. आपको क्या इतना MPV से प्रेम है? चलिए. So as I was saying, तो it has been existing पहले से. Similarly, how many of us have been अभी भी lucky enough to still have grandparents? आप लोग के हैं? Perfect. It was very unfortunate last year I lost my grandmom. But the reason I'm telling you this is मेरी दादी का हिसाब बहुत पक्का था. मतलब आपके घर में भी एक सीनियर सिटीज़न होंगे जो खाता मेंटेन करते होंगे, उनकी डायरी होगी कि यार ये इतना खर्चा हो रहा है, ये इतना खर्चा हो रहा है, आलू टमाटर भिंडी प्याज, इसको इतना दिया, इससे इतना आया, एवरीथिंग. वो ना अकाउंटेंसी नहीं है. वाई एम आई टेलिंग यू दिस? दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. ये तो क्या, तो ये कर दिया है द किंग, इसको तो निकालना पड़ेगा हमको. वक्त चलिए. सो बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटेंसी.
where we will be recording only transactions, that is bookkeeping. खाली लिखने को bookkeeping बोलते हैं, और जब आप उसको एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, वो अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी कहलाएगा. सो जस्ट रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इज जॉब ऑफ अ बुक कीपर, दैट इज अ क्लरिकल जॉब. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ क्लरिकल जॉब? मतलब इट इज़ नॉट रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ स्किल, सिर्फ लिखना ही है. लेकिन उन ट्रांजैक्शंस को जब आप एनालिसिस करोगे, आप समझोगे, दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग एट एज अकाउंटिंग, है ना. फिर से बताइए नाम मैम. कृषा. कृषा, पूरे अकाउंटेंसी का पर्पस क्या है? दो ही है. आप पढ़ेंगे थियोरेटिकली, बहुत कुछ पढ़ेंगे आप कि अच्छा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को टैक्स देने के काम आता है, इन्वेस्टर्स को अपना वैल्यूएशन बताने में काम आता है. घूम फिर कर दो ही कारण है. आज कृपा, आज मैं अकाउंटेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों मेंटेन करूं? अगर मेरा अच्छा चल रहा है, घर पे आ जाता है पैसा, हिसाब रखने का ज़रूरत ही क्यों है? दो कारण है दैट वी आर गोइंग टू स्टडी दिस सब्जेक्ट सो दैट इन द फ्यूचर आप ये यूज़ कर पाएँ. दो चीज़ों का मतलब है, एक है प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरा होता है नेटवर्थ. ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं. दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट मैटर. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आस्क मी how much money do I make and I tell you I have property here, I have property there, I am not answering your question. But if you ask me, bhaiya, what is your net worth, and I tell you this is what I earn, I am still not answering your question. There are two aspects to recording of transactions that we need to understand first. किसी भी इंसान की दो ही चीज़ें मैटर करती हैं. नंबर वन प्रॉफिटेबिलिटी, नंबर टू नेटवर्थ. सबसे पहला कि आप प्रॉफिटेबल हो कि नहीं, और ये शब्द मैं बोलूँगा ऑफेंसिव नहीं है, सच में नहीं है, सुन के खराब लगता है पर नहीं है. नेटवर्थ ही मतलब है उसका, दूसरे में मत लेना. औकात क्या है? नेटवर्थ का मतलब औकात होता है. अब नेटवर्थ देखने के लिए आप इनकम और एक्सपेंस नहीं देखेंगे, आप एसेट लायबिलिटी देखेंगे. किसी का भी कंपनी का नेटवर्थ अगर आप चेक करना चाहते हैं, मैम, are you aware that Uber is a loss-making company? It's not profitable, but it is a multi-billion-dollar valuation company. औकात है कि नहीं है, पर प्रॉफिटेबल नहीं है. एक मेरी छोटा सा कंपनी, मतलब फर्म हूँ मैं, एकदम छोटा सा, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हम लोग, हम प्रॉफिटेबल हैं, पर अन अकेडमी की नेटवर्थ का मतलब 0.00001% भी नहीं है. अन अकेडमी लॉस मेकिंग कंपनी है, अभी बंद होने की वर्ज पर है, पर करेंटली एसेट्स बहुत हाई है उनके. अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन हैविंग अ हाई नेटवर्थ और हाई प्रॉफिटेबिलिटी. सम पीपल आर लकी टू हैव बोथ. रिलायंस प्रॉफिटेबल भी है और नेटवर्थ भी है. सम पीपल हैव अ बैड लक ऑफ नॉट हैविंग बोथ. लॉस में भी है, बर्बाद हो चुके हैं. पर अंडरस्टैंड दैट देर आर टू एस्पेक्ट्स. जस्ट एग्जाम्पल जो मैं दे रहा था, जिया माई ग्रैंड मॉम has never worked in her life, but उनके नाम पे काफ़ी प्रॉपर्टीज़ थी. when she was there with us, she had an FD and she had a lot of jewelry. नेटवर्थ था कि नहीं? औकात तो है ही, पर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है. क्यों? क्योंकि कोई इनकम ही नहीं है. सो अनलेस यू हैव इनकम्स यू कांट बी प्रॉफिटेबल, and unless you have net worth, मतलब asset liability के concepts में, you do not have net worth. Anybody who has a brother or sister or someone who is working, या not working, maybe older sister, brother जो अपना business कर रहे हो, just starting out like 25-26, cousin भी चलेगा, I'm sure होंगे, जानते होंगे आप. उनसे जब मिलेंगे ना, because they've just started out in life, they won't have a very high net worth, but they might be very profitable. उनका काम, घर बहुत अच्छा चल रहा है, पर उनके नाम पे अभी बहुत सारी प्रॉपर्टी वगैरह ये सब नहीं है. सो द रीज़न दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अकाउंटेंसी इज टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स. हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस एंड व्हाट इज द नेटवर्थ ऑफ अ बिजनेस. अब नेटवर्थ के लिए दो चीज़ें चाहिए, एसेट और लायबिलिटी, और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इनकम और एक्सपेंस. बस. जो लोग की ओरिएंटेशन की क्लास हुई थी, मैंने बोला था ना, पूरा अकाउंट 4 पिलर्स पे खड़ा है: एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस.
ये आपको प्रॉफिट बता देगा, ये आपको नेटवर्थ बता देगा, एंड देन अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। चलेगा? चलिए, तो आज बात करेंगे हम लोग सबसे पहले एसेट्स की। बताइए सर, एसेट क्या है? Very good answer. Anything that I own. He said something that I buy. It cannot be rented. A resource which you own and which is expected to generate future economic benefit. बस एक चीज़ बदल दो अपने आंसर में, ज़रूरी नहीं है कि रेवेन्यू जनरेट हो। लास्ट क्लास भी अपने बात किए थे, पोटेंशियली आपको एक्सपेक्टेशन है कि इससे रेवेन्यू जनरेट हो। आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं मैम, सोचिए कि भाड़ा पे चढ़ाएंगे, मिल ही नहीं रहा टेनेंट, खाली जा रहा है, तब भी वो एसेट है। इट डज नॉट मैटर वेदर द एसेट इज जनरेटिंग द रेवेन्यू और नॉट। व्हेन यू बॉट इट, यू हैड एन एक्सपेक्टेशन ऑफ जनरेटिंग सच रेवेन्यू। अग्रीड? सर्टन टाइम्स वी बाय एसेट्स नॉट टू जनरेट रेवेन्यू बट टू यूज इट इन द बिजनेस, दैट इज ऑल्सो एन एसेट। इससे मेरा डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेशन नहीं आता है, ये मेरे पढ़ाने में मदद करता है जिससे मेरा रेवेन्यू जनरेट होता है। यहाँ से मेरे को कोई डायरेक्ट रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, पर ये मेरे को पढ़ाने में मदद करता है, ये मेरे को पढ़ाने में मदद करता है। सो दीज आर एसेट्स दैट आर यूज्ड इन द बिजनेस। एनी काइंड ऑफ अ रिसोर्स दैट इज गोइंग टू बी गिविंग यू अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब सिर्फ इनकम नहीं है, रीसेल भी है। द बेस्ट एग्जाम्पल दैट आई कैन गिव यू इज अ स्टॉक मार्केट। व्हेन यू बाय एसेट्स, व्हेन यू बाय अ स्टॉक, सपोज आप रिलायंस का शेयर लेते हैं, इंटेंशन क्या है? महंगे में बेचेंगे, नहीं बिका महंगे में, लॉस में बिका, तो भी खरीदते समय क्या था? एसेट था, एसेट ही लिखेंगे। सो मैं चाहता हूं कि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से टेल मी अराउंड 5-10 एसेट्स दैट यू थिंक आर एप्लीकेबल इन आवर डिस्कशन टुडे। चलेगा? विल स्टार्ट विद यू मैम। आप किस चीज़ का बिजनेस बताए थे आप मेरे को? सो कुछ अच्छा एग्जाम्पल बताइए मैम। प्लांट एंड मशीनरी बनाते हैं कि ट्रेडिंग करते हैं? तो प्लांट एंड मशीनरी लगता होगा आपको उसको बनाने के लिए। आपके लिए मैम कोई एसेट? फर्नीचर ले लेते हैं मैम। कॉमन वाले पहले खत्म करते हैं, फिर बात करेंगे। और मैम किस चीज़ का बिजनेस है आप लोग का? फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है। सो मैम हो सकता है कि जो फैक्ट्री है वो आपकी अपनी है, लैंड एंड बिल्डिंग भी एसेट है। महक किस चीज़ का बिजनेस है? सो गिव मी अ गुड एसेट अदर देन दीज 3। डू यू हैव कार्स इन द नेम ऑफ द बिजनेस? व्हीकल्स लिख देता हूँ, मोटर व्हीकल हो गई, बाइक हो गई, गाड़ी हो गई, ट्रक्स हो गए, सब कुछ इसमें चला गया व्हीकल्स के अंदर, है ना। अमांडा, बिजनेस और जॉब? एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ अ बिजनेस दैट हैज इज एन एसेट? एनीथिंग। इक्विपमेंट्स में आपको हेल्प करता हूँ मैं। मान लीजिए आपके पास प्रिंटर है, शी यूज द वर्ड वाईफाई, प्रिंटर, लैपटॉप, टीवी। अब अलग अलग तो नहीं लिखेंगे, ये सब इक्विपमेंट में चला जाता है। हमारे यहाँ पर देखेंगे कैमराज हैं, ठीक है, फिर बाहर अब जाएंगे तो वहाँ पे एक फ्रिज है, यहाँ पे हमने वो लगा के रखा हुआ है, माइक्रोवेव। ये सब चीज़ क्या है? इक्विपमेंट है, एसेट है। सर बिजनेस की जॉब किस चीज़ का है सर? कैन यू गिव मी अ गुड एग्जाम्पल सर ऑफ? हो गया यार, और कुछ? अच्छा, कई बार होता होगा, नहीं होता होगा, सारा माल एक साल में बिकता नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर बिकेगा, पॉसिबल है? तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाए वो भी एक एसेट है। इफ यू हैव you were dealing in trading, somebody else said there was also trading. So certain times we manufacture or we buy more, and we are in that year we are unable to sell, and we sell in the next year. That is called closing stock. So closing stock is also an asset. Best example आप भूल जा रहे हैं, इससे बढ़िया कोई एसेट ही नहीं है। इसी से तो सब कुछ आएगा, कैश से बढ़िया कोई एसेट ही नहीं है। अब आप बोलेंगे फ्यूचर बेनिफिट क्या है? कुछ भी खरीद सकते हो, उससे प्योरेस्ट एसेट कुछ नहीं है। कैश इज किंग, है ना। बताइए मैम, आपके लिए कोई अच्छा बढ़िया एसेट? थोड़ा अब डिफिकल्ट वाले पे चलें, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ना एक स्टूडेंट थे, अब अक्वाटिका का नाम सुने? तो जो अक्वाटिका के वन ऑफ द ओनर्स हैं, उनके बेटे मेरे से पढ़ते थे। तो मेरे को बोले कि भैया एक बार चलिए मेरे साथ अक्वाटिका रात को। हम बोले भाई रात को क्या करने जाना है?
बोला नहीं, एक अलग एक्सपीरियंस है, आप देख के आपको समझ में आएगा। तो इतना सुंदर लग रहा था ना, कोई नहीं था, लाइटिंग वाइटिंग था, पर जैसे ही मैं घुसा 16 गार्ड डॉग्स मेरे पास भाग भाग के आ गए। मैं लाइफ में इतना कभी नहीं डरा हूँ जितना उस दिन डरा था। मतलब 6-6, मतलब आप पकड़ लो घोड़े जितने बड़े कुत्ते होंगे वो लोग, ग्रेट डेन, वे सब जो बड़े बड़ी ब्रीड नहीं होती हैं। तो मैंने बोला ये क्या है? बोला भैया सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। हाँ ना में जवाब दीजिए, अनकन्वेंशनल एसेट बट अ वेरी कॉमन एसेट नाउ अ डेज इज लाइफ स्टॉक। अ लॉट ऑफ बिजनेसेस वुड यूज हॉर्सेस, अ लॉट ऑफ बिजनेसेस वुड यूज एलिफेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर बिजनेस एक्टिविटी। आप बहुत बड़ा बैंड वाला आदमी है, आप भाड़ा पे घोड़ा देते हैं लोगों को। बिजनेस है तो बिजनेस है, इसमें क्या है, बहुत तरीके के बिजनेसेस हैं। सो लाइफ स्टॉक इज एन एसेट। एनीथिंग एल्स व्योम? जगह बोल रहे हैं आप, हो गया यार लैंड एंड बिल्डिंग। अब तुम फैक्ट्री का लैंड बोल, स्टोरेज का लैंड बोल, ऑफिस का लैंड बोल, एक ही बात है। मैम एनी अदर एसेट दैट यू कैन थिंक ऑफ? मशीनरी इज मेनली यूज्ड इन योर बिजनेस। Anybody can think of intellectual property? Jewelry is a very good example, ma'am, but it has to be very limited to jewelry businesses. Personal assets के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, business related होना होगा, ठीक? पर it is an asset for a personal person, 100%. Raw material is closing stock, जो बच गया। Sorry? जो खरीदा ना वो expense है। The raw material that you bought is expenditure. So would I expect future benefits? No sir, you expect current benefit. Keshav, would you want your stock to be sold in the next year or current year? So खर्चा है, asset है, asset नहीं है ना? सर आप Are you a Marvel DC person? तो सर अगर आज मेरे को मूवी बनानी है मार्वल कॉमिक्स के कोई भी कैरेक्टर पे, मान लो कैप्टन अमेरिका की मूवी बने, आयरन मैन की मूवी बने, तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को पहले मार्वल कॉमिक से पेटेंट लेना या कॉपीराइट लेना पड़ेगा, उसके बिना वो बना नहीं सकता। आप जानते हैं देयर इज दिस कंपनी कॉल ग्रीन प्लाई, प्लाई बनाते हैं। अब उनका क्या हुआ, क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी बन गए तो बाकी प्लाईवुड कंपनी ने क्या किया जानते हैं, कुछ कुछ चोरी करने के चक्कर में किसी ने नाम रख दिया ग्रीन गो, किसी ने नाम दिया ग्रीन लैम। अब कंज्यूमर को फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा है, वो बोलता है ग्रीन है मतलब ग्रीन प्लाई होगा। तो आप गूगल करके देखिएगा, ग्रीन प्लाई ने ग्रीन शब्द को ट्रेडमार्क करा लिया है कि कोई भी प्लाईवुड का आदमी अपने प्लाई पे ग्रीन नहीं लिख सकता, लिखेगा तो पेनल्टी देना पड़ेगा। दैट इज अ ट्रेडमार्क, नोबडी कैन कॉपी योर नेम। देखिए होंगे ना इसमें ऊपर भी है, आर का मतलब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, नोबडी कैन कॉपी। कुछ कुछ में टीएम होगा, कुछ में आर होगा, कुछ में टीएम होगा, फर्क होता है दोनों में। आर मतलब आपका ट्रेडमार्क अभी रजिस्टर हो गया है और एकदम वैलिड है, टीएम है पेंडिंग प्रोसेस में है, अभी भी आपने अप्लाई किया है अभी तक आपको मिला नहीं है, वो टीएम होता है। आर मतलब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, दोनों ही ट्रेडमार्क है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत एसेट्स होते हैं बिजनेसेस में, पर सबका एक ही क्राइटेरिया है, एनीथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड टू गिव यू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। Very good question, sir. But anything that can only be measured in monetary terms is an accounting transaction. आज आप पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सो मेरा भी मानना है कि एक कंपनी का सबसे बड़ा एसेट उसका एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर या ओनर खुद है, पर उसकी वैल्यूएशन करना संभव नहीं है। सो इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट सर। एनीथिंग दैट इज ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी रिप्रेजेंटेड इन अकाउंटेंसी। Like for example, think about it. How important is Mukesh Ambani for Reliance? Extremely important. अगर कभी उनको कुछ हो जाता है, आप जानते हैं रिलायंस का स्टॉक प्राइस हाफ हो जाएगा। He is that important a person. पर आप जानते हैं जब भी होगा, आने वाले 50-100 साल बाद, भगवान करे उनको बहुत लंबी उम्र हो, जब भी होगा वो अकाउंटिंग रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि इवन दो ही इज सो इंपॉर्टेंट, हिज वैल्यूएशन कैन नॉट बी डन इन मॉनेटरी टर्म्स। Only those assets which can be represented and valued in terms of money will be recorded. Anything that is not represented in money will not be recorded. But it's a very good point. Ma'am, any asset that you can think of? Stock हो गया, stocks अलग हो गया, एक हो गया शेयर बाजार, you buying stocks, वो भी एक asset है।
और स्टॉक मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया, अनविथ एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ कि हो गया मोस्टली, पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ये सारे इधर चले आते हैं एसेट्स में. ऑल ऑफ दीज आर एसेट्स. एक्सपेंस क्या होता है? खर्चा क्या हो गया? कृपा, स्पेंडिंग्स. अच्छा, बात करेंगे इसमें आज, हाँ पक्का से. पर खर्चा का मतलब होता है वो चीज़ जो आप स्पेंड कर रहे हैं, आई एग्री, बट उससे आपको सिर्फ करंट इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, रादर सैलरी. एम्प्लॉय वुड नॉट बी दी एक्सपेंस, सैलरी टू दोज एम्प्लॉयज इज दी परफेक्ट एग्जाम्पल, है ना. कार अभी कोई बोला ना एसेट है. फ्यूएल क्या है? एक्सपेंस है. एसी क्या है मेरे लिए? पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है ना. फर्नीचर क्या है? पर जानते हैं डेप्रिसिएशन बोल के एक खर्चा होता है, वो हम लोग डेप्रिसिएशन मानते हैं, मतलब एक्सपेंस मानते हैं. डू यू अंडरस्टैंड द मेजर फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड एक्सपेंडिचर? समझ पा रहे हैं अमांडा? फॉर एग्जाम्पल, रेंट पेड, एसेट और एक्सपेंस? एक्सपेंस. सैलरी पेड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एक्सपेंस. यू बाइंग अ प्रिंटर, वो एसेट हो गया. क्या ना, अलाइना. मेकिंग सेंस? So we have to first try to differentiate between an asset and an expense, and then we have something known as incomes and liabilities. But before that, I would like to introduce you to certain concepts, certain assumptions in accountancy, certain rules in accountancy that we will not be able to go forward जिसके अगर if we don't do this. So सबसे पहला point जो मेरे को आपको बताना है वो है going concern concept. So this is an assumption that we have to use whenever we are making accounts, or whenever we are doing books of accounts, we will always assume that it is a going concern. मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि the business will continue forever. That is the assumption. जी हाँ, संभव है कि कल बिजनेस बंद हो जाए, कल आपका पूरा लॉस हो जाए, सब खत्म हो जाए, पर जब आप अकाउंट्स बनाओगे क्या सोचकर बनाओगे? बिजनेस विल कंटिन्यू टिल परपेचुइटी. There is neither the need nor the necessity to curtail or reduce the operations of the business. The business will go on forever. यही मान के चलेगा. अब आप पूछेंगे क्यों? इसका बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है. आप एक्सपेंस और एसेट में फ़र्क कर पाते हैं क्योंकि गोइंग कंसर्न है. एक सिचुएशन देता हूँ मैं आपको. हाँ, भगवान ना करे कभी आप किसी को ऐसे को जाने, 95 ईयर्स के कोई हैं, उनको डॉक्टर बोल देता है सर आपका आखिरी दिन है आज, कल आप जा रहे हैं कंफर्म. वो जाकर एक 4 करोड़ की रोल्स रॉयस ले आते हैं, एसेट की एक्सपेंस, पर रोल्स रॉयस एक ही है सर, खर्चा. फॉर अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देयर हैज टू बी अ फ्यूचर फर्स्ट. एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने के लिए पहले फ्यूचर तो एग्जिस्ट करे. जब तक आप ये मान ही नहीं रहे हो कि बिजनेस विल कंटिन्यू ऑन फॉर एवर, हाउ कैन यू रिकॉर्ड इट एज एन एसेट? कुछ बिजनेसेस में जानते हैं गोइंग कंसर्न होता ही नहीं है, जानते हैं, उनके लिए एसेट ही नहीं होता, कुछ सब खर्चे होते हैं. देयर इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस कॉल्ड अ जेवी, जॉइंट वेंचर. सो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर दैट द साउथ सिटी मॉल वाज एक्चुअली नॉट अ कंपनी that made that mall? It was actually 7 industrialists of Calcutta, the Shrachi group, the Todi group, all of them came together and they made the mall. The idea was this only कि भाई हम अपना अपना काम है, अपने मॉल बनाएंगे, अलग अलग रास्ते चले जाएंगे, विल स्प्लिट इट अमंगस्ट आवरसेल्व्स, व्हाटएवर रेशियो वाज डिसाइडेड. पर सोच कर देखिए, बिजनेस के अंदर पहले ही बोल दिया गया कि एक दिन खत्म होगा. देयर इज नो गोइंग कंसर्न, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एन एसेट, एवरीथिंग इज एक्सपेंडिचर. 7 दिन के लिए दुर्गा पूजा में लोग कोई स्टॉल लगाते हैं. अब मान लो एक तो टेबल खरीदते हैं, कैन दे कॉल इट एज एन एसेट कि एक्सपेंस? बिजनेस ही तो 7 दिन में खत्म हो जाएगा, कहाँ है फ्यूचर? फॉर यू बी एबल टू सेग्रीगेट बिटवीन एन एक्सपेंडिचर एंड एन एसेट, फर्स्ट हैव अ फ्यूचर. मतलब बहुत ही फंडामेंटल बात है नहीं, कि अगर एक इंसान
का फ्यूचर नहीं है तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने का तो सेंस ही नहीं है। सो पहला अजम्पशन जो हम पहले अपने आप को बोलते हैं कि भाई देख लो हमारा हमेशा फ्यूचर है, चाहे आप लॉस ही में क्यों नहीं जा रहे हैं कोई बात नहीं। ऊबर यही बोलता है मैं अभी चलूँगा, मेरे को बंद करने का नीड नहीं है, लॉस है तो क्या हुआ, बहुत लॉस खाते हैं लोग, तभी वो एसेट बोल पाता है, नहीं तो बोल नहीं पाएगा, नहीं तो सब खर्चे बन जाएंगे। अग्री कर रहे हैं? तो ये गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको मैं आज इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ वो थोड़ा टाइम लगेगा, अभी ये आधी घंटा लग जाएगा इसको समझने में, क्योंकि बहुत मतलब 12-13 साल की कंडीशनिंग को आपको आज ठीक करना है। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो एक शब्द मैम ने यूज किया था स्पेंडिंग, पैसा देना, खर्चा करना। आज आपके लिए स्पेंडिंग का परिभाषा चेंज हो जाएगा। फ्रॉम टुडे यू विल अंडरस्टैंड दैट द स्पेंडिंग दैट यू हैव लर्नड is not actually spending. The concept of expenditure you will learn today is very different than what you have been told. तो मेरे को एक बात बताओ, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया? अभी आया होगा। कौन से महीने का आया है? अभी अप्रैल चल रहा है, ये मार्च का बिल है। आप पे कब कर रहे हो? ये खर्चा किस महीने का है? अग्री करते हो ना आप? जस्ट बिकॉज फिजिकली आप अप्रैल में पे कर रहे हो तो ये अप्रैल का एक्सपेंडिचर नहीं है, ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर किसका है? मार्च का। इनकर सर्विस आप कब लिए हो? मार्च में। तो एक्सपेंडिचर कौन से महीने में लिखना चाहिए? मार्च में। प्रॉब्लम यह है कि बचपन से हम लोग को क्या बताया गया था कि पैसा पॉकेट से निकलेगा तो ही खर्चा होगा, मनी गोइंग आउट इज एक्सपेंडिचर। आई एम सेइंग टुडे दैट विल चेंज फॉर यू। मान लीजिए आप पुचका खाने गए हैं, 10 पुचका खाते हैं और पुचका वाले भैया को बोलते हैं कि हम आज नहीं कल पैसा देंगे। आप 2 महीने बाद उसको पैसा देते हैं इन द मंथ ऑफ जून। माई क्वेश्चन इज व्हेन डू यू रिकॉर्ड द एक्सपेंडिचर? टुडे, अप्रैल। पर भैया पैसे तो नहीं दिए। इट डज नॉट मैटर। इन अकाउंटेंसी वी गिव प्रेसिडेंस, वी गिव इंपॉर्टेंस टू व्हेन द एक्सपेंडिचर हैपन्स and not when the payment for such expenditure will happen. मान लो महक बोल रही है कि भैया I will study from you, I have made up my mind, but I will pay you after 3 months. So would you consider her expenditure directly in July, or we will say no, April का फीस April का खर्चा, May का फीस May का खर्चा, June का फीस June का खर्चा। मेरे घर में ना ग्रोसरी इन स्पाइट ऑफ ब्लिंकिट, जोमेटो, ऑल दैट, आज भी नीचे दुकान से ही आती है। क्यों? क्योंकि वो मेरे को खाता सिस्टम में उधारी देता है। आप लोग में जानते हैं खाता सिस्टम क्या होता है? सो हम लोग उनके पास जाते हैं, सामान लेते हैं, 3 महीने बाद वो हमको खाता भेजते हैं। तो अगेन जुलाई में मैं पेमेंट करता हूँ, मान लीजिए 20,000 रुपये। क्या ये सच है कि झूठ कि जुलाई का खर्चा 20,000 नहीं है? अप्रैल का अलग है, मई का अलग है, जून का अलग है। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट एक्सपेंडिचर्स विल बी रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे अकर। नाउ यू विल से पैसे तो गए नहीं, कोई बात नहीं, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। मैं आपको स्टूडेंट मान चुका हूं, आप पढ़ रहे हो मेरे से, पर आप मेरे को पैसे नहीं दे रहे हो। मैंने कमाई कर ली कि नहीं की? सोचो, आराम से बताओ, आपको क्या लग रहा है? मैम इज सेइंग नहीं की, कर ली ना। पैसे नहीं मिले तो क्या हुआ? उधारी तो आ गई। ऐसे लोगों को डेटर बोला जाता है, जिनसे पैसा आने को है ना, उनको डेटर बोला जाता है। और जिनको हमको पैसा पे करना पड़ता है उनको हम क्रेडिटर बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? सो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेफर्स टू रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एज एंड व्हेन दे अकर। जहां पर ट्रांजैक्शन होगा, जब ट्रांजैक्शन होगा तब लिखना है। समझ पा रहे हैं? परफेक्ट। अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से नेक्स्ट पे मूव करेंगे हम लोग। अच्छा, और बात करना होगा इस पे, खत्म नहीं हुआ है। सो कैश बेसिस को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है। एक बहुत ही फेमस न्यू अलीपुर में ना रोल की दुकान है, कभी जाइएगा तो देखिएगा, अनामिका बोल के। गए हैं? आपको क्या लगता है वो अक्रूअल फॉलो करता होगा? हमको लगता है रोल का दुकान है, कैश आया तो इनकम, कैश गया तो एक्सपेंस। अब आपके लिए वो नहीं है। आप अब आपसे क्या सोच रहे हैं कि नहीं, रोल बेचे हैं, उधारी में बेचे, कैश में बेचे, कि मतलब इट डजंट मैटर, I will record my sale when the product is sold.
मतलब ये आई, बोतल लेके चली गई, पकड़ो ना, बोली पैसा बाद में देंगे। इनकम मैं रिकॉर्ड करूं कि नहीं रिकॉर्ड करूं, मैंने सेल की कि नहीं की। तो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यही बोलता है कि आप पैसे मिलने की वेट मत करो। अच्छा, संग संग मिल जाए वेरी गुड, तब तो झमेला नहीं है। लेकिन आई एम सेइंग दैट कैश रिसीव्ड एंड कैश पेड विल नॉट टेक प्रेसिडेंस, इंपॉर्टेंस नहीं है वो। जैसे ही खर्चा इनकर कर लोगे, इनकर मतलब समझते हो, कर दोगे, खर्चा हो गया। अब आप पे करो नहीं करो, इट डजंट मैटर, चलेगा। और भी मैं आऊंगा इस पर अभी और बताता हूं आपको कुछ। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सबसे पहले तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब आप स्कूल जाओगे, कॉमर्स वॉमर्स पढ़ोगे, एक कॉन्सेप्ट आएगा सेपरेट लीगल एंटिटी, ये वो नहीं है, पहले ही क्लियर कर लो। सेपरेट लीगल एंटिटी सिर्फ कंपनीज में होती है, सिर्फ कंपनी में। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सब में होती है, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर, कंपनी, सब में। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बोलता है, कॉमर्स वाला बोलता है कि अगर कोई आपकी कंपनी को सू करता है, केस करता है आपके ऊपर, तो वो आपके ऊपर केस नहीं कर रहा है, वो बिजनेस को सू कर रहा है। इफ यू आर सुइंग रिलायंस फॉर बैड कनेक्शन ऑफ जियो, यू आर नॉट सुइंग मिस्टर मुकेश अंबानी। Or if you are suing Mr. Mukesh Ambani for some reason, you are not suing Reliance. In the eyes of law, we have created a company which is separate from the owner. But there has been no separate legal entity given to sole proprietorships and partnerships. If you sue R Khanna Center for Excellence, you sue all partners of R Khanna Center for Excellence. मैं example हमेशा इसका ही देता हूँ. If you have watched a TV show called Suits, so there are partners in that. है ना, क्या स्पेक्टर लिट है ना। तो अगर आप वो शो देखे हैं, इफ वन पार्टनर हैज मेड अ मिस्टेक ऑफ हायरिंग अ फ्रॉड, ऑल पार्टनर्स हैव बीन एक्सपोज टू दैट, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। क्या उनका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है? हाँ, बट उनका सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। दे डोंट बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बट स्टिल इन द आइज ऑफ लॉ कंपनीज आर सेपरेट। सोल प्रोप्राइटरशिप्स एंड, मतलब आज सपोज क्या नाम बताया आपने सर, आर्यन बोलता है कि मेरे को आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सचेंज पे केस करना है। सो सर आप मेरे पे करोगे, इक्विवेलेंट अमाउंट आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सचेंज पे अपने आप हो जाएगा, क्योंकि कानून के लिए मेरे में और मेरी फर्म में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कानून के लिए कंपनी होता मैं, अगर आरकेसी लिमिटेड होता, तब आप मेरे पे केस करो वो अलग कहानी है, कंपनी पे केस करो अलग कहानी है। पर यहां पर वो केस फेस का बात नहीं है, बोल रहा है कि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। आप फीस किसको देते हो, मेरे को कि आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सीलेंस को? मेरे को नहीं देते हो। हाँ, कोइंसिडेंटली मैं ओनर हूं यार, आकाश इंस्टीट्यूट का ओनर पढ़ाता नहीं है। यहां ओनर मैं हूं, एम्प्लॉय भी मैं हूं। तो इसीलिए आपको लगता है कि अरे भैया को ही तो दे रहे हैं, पर ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में खुद ओनर काम नहीं करता है। तो यहां मैं कर रहा हूं तो वो कोइंसिडेंस हो जाता है, पर अदरवाइज यू आर नॉट पेइंग मी, यू आर नॉट पेइंग मिस्टर एमपी बिरला द फीस, यू आर पेइंग द एमपी बिरला स्कूल। अकाउंट्स किसका बनता होगा, रोहिन खन्ना का या आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सीलेंस का? आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सीलेंस का। तो ये है आरकेसी। इंसान क्रिएट कर दिए इसको, और ये मैं हूं। मैंने पैसे दिए हैं 5 लाख रुपए कि आरकेसी ये लो बिजनेस करो। आरकेसी इसको क्या मानेगा, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम की एक्सपेंस? आराम से सोच के जवाब दे, वापस करना होगा इसको। सो इसी कॉन्सेप्ट से एक बहुत बड़ा रेवलेशन आता है दैट कैपिटल इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। मेरे को याद है ओरिएंटेशन में किसी बच्चे ने बोला था कि ये तो एसेट है, गलत नहीं बोला था, रोहिन खन्ना के लिए ही एसेट है, एकदम सच बात है। लेकिन आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए कैसे एसेट हुआ? मैं अगर आपको दूं सर ये लो 5 लाख रुपए से बिजनेस करो, आपका हो गया क्या? आपको वापस करना होगा। तो मैं एक आदमी क्रिएट कर देता हूं जो एक्चुअली में है नहीं, पर बोल देता हूं ये अलग है,
और इसको पैसे दे रहा हूँ। अब आप पूछेंगे इसकी ज़रूरत ही क्या है। आप और रोहिन, मतलब रोहिन खन्ना और आर.के. सिंह तो एक ही है भैया, आपको भी पता है मेरे को भी पता है, तो ये एक्टिंग करने का क्या ज़रूरत है। अगर आप रिलायंस होते, मुकेश अंबानी होते तो समझ में आता, लेकिन ये तो सच ही, आप ही पढ़ाते हैं, आप ही ओनर है, आप ही टीचर है, तो आप में ये डिफरेंस क्यों। ये मैं आपको बताऊंगा विद द कॉन्वर्जेशन विद आई हैड विद माई मदर व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग। ये सेम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं लास्ट 10 साल से एग्जाम्पल देते आ रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत ही क्यों है। तो 2012 में ना, जब मैं कंपनी सेक्रेटरी बना, मेरा CA फाइनल का एग्ज़ाम मैंने दिया, मैंने डिसाइड किया कि मैं पढ़ाऊँगा। और मैंने सबसे पहले अपने मम्मी पापा के पास मैं अप्रोच किया एंड आई वेंट टू माई मॉम, एंड माई मॉम को मैं बोला कि मेरे को पढ़ाना है, एंड द फर्स्ट थिंग दैट शी सेड वाज, बेटा इसमें ना कुछ बचता नहीं है, मतलब इट्स नॉट वेरी प्रॉफिटेबल, दैट इज़ व्हाट शी टोल्ड मी, एंड आई वाज शॉक्ड। मैं बोला क्या बोल रहे हो मम्मी, बोला आपको मैं इतने साल से देखा हूँ, आई हैव सीन सो मेनी टीचर्स मेकिंग सो मच मनी, आई डोंट बिलीव दैट इसमें प्रॉफिट नहीं है। अगर आप इसको ढंग से करो, यू कंसिडर दिस एज फुल फ्लेजेड डेडिकेशन, और आप इसको एकदम शिद्दत से करो तो 100% इसमें प्रॉफिट है। मैं बोली नहीं है तो मैं तेरे को प्रूव कर सकती हूँ। मैं बोला बताओ कैसे, देख ले सेविंग ही नहीं है कोई। मैं बोला अच्छा, तब तो आपका कॉन्सेप्ट ही गलत है। मम्मी बोल रही हैं कि जो आलू टमाटर भिंडी प्याज हुआ है वो बिजनेस का खर्चा है, जो मेरी स्कूल फीस गई है, जो हम घूमने गए हैं, जो गाड़ियाँ खरीदी हैं, वो बिजनेस का खर्चा और कुछ बचा नहीं है। अरे बिजनेस ने प्रॉफिट दिया, आपने उड़ा दिया। वो तो रिलायंस का भी, अगर वो हम 80 करोड़ का रिहाना को बुलाएंगे और उड़ा देंगे तो रिलायंस का भी तो प्रॉफिट नहीं है। यू यूजिंग योर बिजनेस प्रॉफिट एंड सेइंग दैट अच्छा कुछ बचा नहीं, ये आप कैसे बोल सकते हो कि फिर मतलब तो सब, तो सारा बिजनेस ही लॉस में है, एवरी सिंगल बिजनेस इज लॉस मेकिंग। ये मेन रीजन आप समझ रहे हो। बोल रहा है ये लोग कि व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग इनकम्स, ओनली रिकॉर्ड बिजनेस इनकम्स, व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग एक्सपेंसेस, रिकॉर्ड बिजनेस एक्सपेंसेस। आलू टमाटर भिंडी प्याज को आप खर्चा बोलोगे तब तो यार सभी के घर में एक ही इशू है, पैसे तो बचते किसी के भी नहीं। आप अपने पर्सनल फॉरेन टूर ट्रिप्स कर रहे हो, यूरोप जा रहे हो, और बोल रहे हैं पैसे नहीं बच रहे, प्रॉफिट नहीं आया। अरे प्रॉफिट आया, आपने उड़ाया, नहीं उड़ाते तो बच जाता। टुडे सपोज आप सोच कर देखिए, मेरा इनकम आया 10 रुपया, ठीक है, एक्सपेंसेस 3 रुपये, 7 का प्रॉफिट आया। ये 7 रुपये में घर जाके लेके पार्टी कर दिया, और बच्चा बोल रहा है प्रॉफिट नहीं आया। अरे प्रॉफिट तो आया यार, ये क्या बात हुआ, 70% प्रॉफिट है तुम्हारा, सेल का 70% बचता है तुम्हारा। अब ये तो आदमी जीता ही खर्चने के लिए, मैं समझता हूं, पर इसको बिजनेस का खर्चा तो मत बोलो। इफ यू आर गोइंग टू इंक्लूड योर पर्सनल एक्सपेंडिचर्स, आप बीमार हो गए, आप हॉस्पिटल के खर्चे बिजनेस में डाल रहे हो, ये तो प्रॉफिट का रिफ्लेक्शन नहीं है। प्रॉफिट देखना है तो किसका देखना है, आर.के. सिंह का देखना है ना, तो उसके लिए तो पहले एक इज्जत दो, उसको अलग इंसान बनाओ। आर.के. सिंह के अलग खर्चे रखो, रोहिन खन्ना के अलग खर्चे करो। तो सुबह ही वाले बैच में ना एक बच्चा बहुत ब्रिलियंट बात बोला, पर भैया हम लोग काम कर ही तो रहे हैं ताकि घर में खर्चा करें, तो ऑफिस से जो 7 रुपया कमाए हैं वो घर नहीं लेके जाए, बिल्कुल लेकर जाओ, नहीं तो फायदा ही क्या है 7 रुपये का। उसको खर्चा मत बोलो, उसको आज से ड्रॉइंग्स बोलो, दे आर नॉट एक्सपेंडिचर्स। वो 4 पिलर में ना एक ही एक्सेप्शन आता है, एक ही आता है, वो ड्रॉइंग्स है, ना वो एसेट है और ना वो बिजनेस का एक्सपेंस है। इनकम लायबिलिटी तो बनता भी नहीं है, या तो खर्चा बोलते हैं कुछ बच्चे, या तो एसेट बोलते हैं। देखिए एसेट नहीं बोल सकते आप उसको, क्योंकि कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं आएगा इस 7 रुपये से, ओनर लेके चला जा रहा है। इसका नाम ड्राइंग्स रख दिया इन्होंने, बोला कि ये पर्सनल एक्सपेंडिचर्स है जो बिजनेस पे कर रहा है, ये प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं करते हैं। ये प्रॉफिट कमाए हो, ये बात समझो, प्रॉफिट ले जाना चाहते हो ले जाओ, पर ये मत बोलो कि खर्च हो गया, तुमने उड़ा दिया। अब इससे तुम क्या करते हो हमको मतलब नहीं है। तो एक्सक्यूज मी, तो मैंने मम्मी को सेम चीज़ बोली कि आप ये मत बोलो कि मेरे पास कुछ बचा नहीं, आप ये बोलो, अरे मैंने मैथ करके दिखाया था, मैंने बोला था आप मेरे को बताओ लास्ट 30 साल से पढ़ा रहे हो, 12 महीना करके एवरेज आउट करके बताओ कि घर पे कितना रुपया खर्चा किए हो। मैं बोली 50-60 हज़ार रुपया। मैं बोला 50 ही लो, लोअर ले लो। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना
तो 6 लाख इंटू 30 लगभग 1.8 करोड़ आता है शायद। 1.8 करोड़ का प्रॉफिट आ चुका है 30 सालों में, और आप बोल रहे हो प्रॉफिट नहीं आया है। अरे आपने उड़ा दिया एक 1.8 करोड़, वो अलग बात है, पर आया तो आपने पैसे आजीवन पैसे बचाए, सेविंग की, प्रॉफिट कमाया, और किसी के आपके रिश्तेदार या मतलब मान लीजिए बच्चा के शादी में 6 करोड़ की शादी कर दी, और आप बोल रहे हैं यार हमारे पास तो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। भाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तुम्हारे पर्सनल खर्चे ज़्यादा है, और कोई मनाही नहीं है पर्सनल खर्चा ज़्यादा होने में, बस उसको खर्चा मत बोलो यार। पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस में ड्राइंग्स का नाम दो। क्लियर है? तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हम लोगों का यही है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का। क्या? कि ओनर का पैसा लगाया हुआ कभी भी हमेशा कैपिटल कहलाएगा, और बिजनेस में खाली बिजनेस एक्सपेंडिचर्स को एक्सपेंस का नाम दिया जाएगा, पर्सनल एक्सपेंडिचर्स को नहीं। तन्विका आपको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं, विच इज पॉइंट नंबर 4, कंजर्वेटिज्म। पहले तो क्लियर कर दें, कंजर्वेटिज्म का मतलब वो इंग्लिश वाला कंजर्वेटिव बैकवर्ड नहीं है। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है प्रूडेंस, समझदारी, रैशनैलिटी। और कंजर्वेटिज्म का रैशनल बहुत ही ब्रिलियंट है अकाउंटेंसी में, और हर जगह काम आता है। मेरे को लगता है, अच्छा एक बार बताइए आप लोगों में से मारवाड़ी लोग कौन है? ये आपको बचपन में ही सिखा दिया गया है। देखिएगा, अगर आपको नहीं सिखाया होगा तो डिसएग्री करना। बेटा होने वाला मुनाफा पे कभी भी ध्यान मत देना, पर अगर होने वाला नुकसान है, मान लो कि नुकसान हो गया है। दिस इज वॉट माई फ्रेंड हैड टॉट मी। मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोनों मारवाड़ी हैं, वो मेरे को एक ही चीज़ बोलते थे, अगर कोई फ़ायदा होने वाला है और हुआ नहीं है, मान ले अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोई नुकसान तेरे को लग रहा है होने वाला है, तैयारी अभी से शुरू करते हैं। नेवर रिकॉर्ड एन एंटिसिपेटेड गेन, बट ऑलवेज रिकॉर्ड एन एंटिसिपेटेड लॉस। एंटिसिपेटेड मतलब समझते हैं, हुआ नहीं है। तो जैसे क्या हुआ, पूर्वी बोली कि भैया सुनिए, हम आपका एकदम गजब का प्रचार करके आए हैं, 500 बच्चा लेकर आएंगे हम आपके लिए, 500 स्टूडेंट्स। अब 500 स्टूडेंट्स का क्या है, वो सुनकर हम बुक कर दिए एक फॉरेन वेकेशन, एक घर ले रहे हैं, और एक गाड़ी भी बुक कर दी है। अरे पूर्वी लाएगी 500 स्टूडेंट। ये नहीं करना है। यू नेवर रिकॉर्ड एन एंटिसिपेटेड गेन। आ जाए तब लिख देंगे, पर अगर हमको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि पूर्वी छोड़ देगी, हम ये मान लेंगे कि पूर्वी छोड़ चुकी है। होने वाला नुकसान लग रहा है, होने वाला है, मान लो हो गया है। अगर नहीं छोड़ी, जैकपॉट, हम तो पहले ही मान लिए थे नुकसान हो गया। और अगर छोड़ दी, हम तो तैयार थे, हम तो पहले ही मान लिए थे लॉस होने वाला है। इट विल प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट केस सिचुएशन। आई कैन गिव यू अ अकाउंटिंग एग्जाम्पल विद दिस। सो यू सेड यू डू, आप बोले थे ट्रेडिंग ना, सो मैम क्या हुआ ना, अराउंड 100 चेन्स बच गई क्लोजिंग स्टॉक, ये एसेट है। अब 100 चेन्स की कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, और मैम जो है वो 200 रुपये में मार्केट में बेचती हैं। आप बताइए 100 चेन्स की वैल्यूएशन कितनी होनी चाहिए, 100 इंटू 100 कि 100 इंटू 200? आपके हिसाब से मैम, आपका बिजनेस है, 100 इंटू 200 कंजर्वेटिज्म को तोड़ देगा। बोलिए क्यों? ये बिकेगा कब? फ्यूचर में। फ्यूचर में प्रॉफिट में बिकेगा कि लॉस में बिकेगा? मत लिखो, मानो 100 में ही बिकेगा। सोचो 150 में बिक जाए, 200 में बिक जाए, वाह मजा आ गया, हम तो 100 सोचे थे, 200 आ गया। ऑल्टरनेटिवली मैम, पापा बोल रहे बेटा ये ना डैमेज प्रोडक्ट्स है, ये ना 80 में ही बिकेगा फ्यूचर में। अब बताओ इसकी वैल्यूएशन क्या होगी? 100 इंटू 80, क्योंकि फ्यूचर में लॉस में बेचोगे, हाँ या ना? बेच चुके हो कि बेचोगे? अभी तक हुआ नहीं है लॉस, यू आर ओनली एंटिसिपेटिंग अ लॉस, बट स्टिल राइट द लॉस। होने वाला नुकसान मान लो हो गया, पर अगर होने वाला मुनाफा है, नहीं लिखना। मतलब अगर मैं आपको एक
मतलब स्टूपिड एग्जाम्पल दे पाऊँ, है ना, मान लीजिए जिया ना, आपको कोई पसंद आया और आप मतलब पहले ही उनको अप्रोच करने से पहले पता है क्या बोले कि ये ना बोलेगा। सपोज आप गए और वो ना बोल दिया, आप अपना दोस्त को मुड़ के क्या बोलेंगे, बोला था ना देखो ना बोलेगा। लेकिन सपोज वो हाँ बोल दिया, तब आपका जैकपॉट है। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिचुएशन, दैट इज कंजर्वेटिज्म। ऑलवेज। अच्छा, ट्रू फॉल्स, द होल इंश्योरेंस बिजनेस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म। डू यू एवर वॉन्ट टू क्लेम योर कार इंश्योरेंस? फॉर दैट यू नो वट इट मीन कि आपकी गाड़ी ठुकेगी, बट हम तब भी हर साल प्रीमियम भरते हैं, 25-25, 20-20 हज़ार का प्रीमियम भरते हैं। बट अगर आप मेरे से पूछे, भगवान करे वो अनयूज्ड ही जाए, वो 25,000 उठाने के लिए मैं अपनी गाड़ी ठोक के अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। आज 12-13 साल से मैं हेल्थ इंश्योरेंस पे कर रहा हूं अपनी, भगवान ना करे कभी भी हमको उसका बेनिफिट मिले, क्योंकि उसका मतलब हॉस्पिटलाइजेशन है। पर हमने इंश्योरेंस कराई क्यों? कि अगर कभी बीमार पड़े, अगर फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला है, अभी के लिए तैयारी करो। मेरा लॉटरी लगने वाला है, मैं आज उसके ऊपर डिसीजन नहीं ले सकता, लग जाए फिर डिसीजन लूंगा। फ्यूचर गेन्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पर फ्यूचर अगर लॉस एंटिसिपेट कर रहे हो, मान लो लॉस हो गया, अब सोचो वो फ्यूचर आया और वो लॉस नहीं हुआ, तुम्हारा ही फायदा है। और फ्यूचर आया, लॉस हो गया, तुम रेडी थे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। चलेगा? सो पहला पॉइंट क्या किए थे हम लोग? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एवर। मेन इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? एसेट और एक्सपेंडिचर में फर्क करना बताता है। अक्रूवल क्या बोलता है अपने वर्ड्स में मैम? ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे अकर। जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस होती जाएंगी वैसे वैसे हम उसको लिखते जाएंगे। कैश पेमेंट, कैश रिसीट सेकेंडरी है। अगर आपके पास ऐसा हो रहा है कि खर्चा अभी हो रहा है पर पेमेंट बाद में हो रहा है, आप खर्चा तब लिखो जब खर्चा हो रहा है, पेमेंट बाद का बाद में देखेंगे। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या था? केशा। And the biggest contribution here is that the capital is the liability of the firm. Last but not the least here was conservatism और prudence. क्या बोलता है? हाँ, बोलता क्या है? और बेटर वर्ड यूज करिए, ऑलमोस्ट करेक्ट है। फ्यूचर में प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना में कोई बुराई नहीं है, बस उसको रिकॉर्ड करने में मनाही है। इज इट रॉन्ग टू बी एक्सपेक्टिंग 500 स्टूडेंट्स? बट मी रिकॉर्डिंग इट टुडे इज रॉन्ग। I promise you, I have not even recorded one of you as my student till now. I have a policy of 3 classes. First 3 classes are trial demo for every one of you. आप 3 क्लास जब तक करोगे, 3 क्लास पसंद आएगा, 4th क्लास जिस दिन आप आए, मैं मान लूंगा कि आप मेरे स्टूडेंट बन गए, मैंने इनकम कमा ली। अब जैसे जैसे आप आते रहेंगे फीस देते रहेंगे, पर मैंने कमाई तो तब की जब आप 4th क्लास में आ गए। समझ पा रहे हैं? तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन हैविंग अ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। द रॉन्ग पार्ट इज टू रिकॉर्डिंग दैट फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, बट विद लॉस वी रिकॉर्ड दैट एक्सपेक्टेशन। अगर आप फ्यूचर में एक लॉस एंटिसिपेट कर रहे हो, वो लॉस आप आज ही लिख दो। अगर आपको लग रहा है ना फ्यूचर में एक नुकसान होने वाला है, कुछ टूटने वाला है, तो आप पहले ही लिख दो लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, anticipated, still recorded. Do you understand what I'm saying? तो ये हो गया कंजर्वेटिज्म का बात। एक और पॉइंट लिखते हैं, एंड आई थिंक क्या नाम था सर आपका? अखिल नहीं, अर्नव ने ये बात उठाई थी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। 2-2 लाइन लिखवा ही दूं क्या? अभी अपना बहुत समय है और कुछ नया भी करना है थोड़ा बहुत। 2-2 लाइन लिखवा दूं? लिखोगे? तो पहले वाला पे लिखो ना, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में।
द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। सर ये तो पता है आप एक हफ्ते में खत्म कर दोगे। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन which states that the business will go on for perpetuity। perpetuity समझते हैं? forever। the business will go on till perpetuity। ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट, कहाँ तक लिखे मैम? आई विल रिपीट अगेन। द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption which states that the going concern concept is a fundamental accounting assumption which states that the business will continue, yeah, will go on, whatever, will continue till perpetuity। ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट, लिख पाए मैम? मैम आपका नाम क्या है? अनीशा। ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट, अ फर्म कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसेट एंड एन एक्सपेंस। ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट, द फर्म कैन, फर्म का मतलब हो गया इंस्टीट्यूशन, द फर्म कैन डिस्टिंग्विश between an asset and an expense। चलेगा? नेक्स्ट लिखिए अक्रूवल। अच्छा, पूरी वर्ल्ड में ना अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, पूरे वर्ल्ड में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। आने वाले मतलब जितना भी आपका रिश्ता बनेगा अब अकाउंट्स के साथ, आप इसको लेके पढ़ो, बीकॉम करो, सीए पढ़ो, सीएस पढ़ो, सीएफए करो, एमबीए करो, अक्रूवल का शब्द आपके लिए मतलब आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। सो इसको अच्छे से समझना और उतना ही आप उसको मतलब अच्छे से मतलब रिटेन करना। लिखिए, द अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग states that income and expenses are to be recorded as and when they occur and not by mere cash payment or receipt। mere cash payment और रिसीट। आप बिलीव नहीं करेंगे, फिर से एक बार लास्ट टाइम बताना है, सॉरी। आर्यन, देयर वाज दिस स्टूडेंट हु अटेंडेड लास्ट ईयर इन क्लास 11, LSE से ही थे। वो आई 11 का फीस दी, संग संग आप बिलीव करेंगे 12 का भी दी थी 11 में। मेरे को एक बात बताइए, क्या मैं उसको आज इनकम लिख सकता हूँ? 12 में पढ़ाना है ना, 12 तो आया ही नहीं अभी तक, पर पैसे मिल गए हैं। सो इट्स नॉट जस्ट एक्सपेंसेस, ऑल्सो इनकम्स। जस्ट बिकॉज यू हैव रिसीव्ड मनी इनकम है ज़रूरी नहीं है, पढ़ाना पड़ेगा तब जाके इनकम जनरेट होगा। नहीं, आपकी स्कूल में मैम आपने डिपॉजिट दिया, आपको मालूम है, जब आप भर्ती हुए हैं, हायना में जवाब दीजिए, वो रिफंडेबल है। इट्स अ सिक्योरिटी डिपॉजिट दैट ऑल ऑफ अस हैव टू गिव व्हेन वी जॉइन अ स्कूल। 14 साल पहले दिया होगा आपके मम्मी पापा ने जब एडमिशन हुई होगी। वो इनकम ट्रीट किया जा सकता है क्या कि वो लाइबिलिटी है स्कूल की? वापस करना होगा ना, कमाया कहाँ है? पर हायना में जवाब दीजिए, पैसे मिल तो गए। पॉकेट में पैसे आने का मतलब कमाया है ज़रूरी नहीं।
आपके पेरेंट्स से जाके आप एक बार पूछिएगा, कोई भी बिजनेस है ना, कोई भी बिजनेस, कितना बड़ा कितना छोटा मैटर नहीं करता, सारे के सारे आदमी लोग जनरली 2 से 3 महीने का क्रेडिट देते हैं, सारे। जनरल रूल ऑफ बिजनेस ही यही है, क्योंकि इतना कंपटीशन है, इतने लोग एक ही चीज कर रहे हैं। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश योरसेल्फ? मैं आपको 3 महीना पैसा नहीं मांगूंगा, अब 3 महीना ट्राई करो, मेरे को बाद में दोगे कोई दिक्कत नहीं है, उधारी अलाउ करूंगा। तो मान लो मैं आपको माल बेचता गया, और उसके बाद आपने पैसे मेरे को 3 महीने बाद दिए, मैं कब रिकॉर्ड करूं इनकम? 3 महीने बाद कि आज? तो एक बच्चा के मन में तो आ ही रहा होगा, हो सकता है सब में आए, भैया मार के भाग गए, तो वो खर्चा का नाम होगा बैड डेट। वो खर्चा तब लिखेंगे जब वो होगा। और पहला सवाल तो मेरा ये है कि अगर आपको एक्सपेक्टेशन था तो आप उधारी में बेचे क्यों? अगर आपको लग रहा था ये पैसा मार के भागेगा तो आपको इसको बेचना ही नहीं चाहिए था। पर हाँ, ये भी सच है कि आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि ये पैसा देगा, अब ये नहीं दे रहा है। बहुत बार होता है, ऐसे ही थोड़ी ना विजय माल्या भाग गए, ऐसे ही थोड़ी ना वो क्या नाम है उनका, चोकसी भाग गए, मेहुल चोकसी, ऐसे ही थोड़ी ना ललित मोदी भाग गए, 100% पैसा मार के भागे हैं। तो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, बट दैट इज अ बैड डेट। इनकम तो तभी रिकॉर्ड हुआ जब मैं सेल किया, है ना। मैं 100% श्योर हूँ ऐसा नहीं होगा, पर मान लीजिए कि वो में से पड़ा 2 महीना, बोला भैया देते और 2 महीना में भाग गया, नहीं दिया, तो ये बैड डेट हुआ ना। पर मेरा ये बात तो सच है कि 2 महीना मैं पढ़ाया हूँ, इनकम तो जनरेट किया हूँ, अब उसके बदले लॉस हो गया। तो जब मैं पढ़ाया तब इनकम लिखूंगा, और जब वो मना कर देगा तब मैं अपना एक्सपेंस लिखूंगा। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती जाएंगी मैं वैसे वैसे लिखता जाऊंगा। कैश इज नॉट दी ओनली थिंग दैट मैटर्स। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो दैट इज अक्रूवल। थर्ड क्या पॉइंट था हमारा? द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। लिखिएगा, द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट states that the owner and the business are separate entities. States that the owner and the business are separate entities, and it is due to this assumption that capital is the biggest liability of a business. बोल रहा है कैपिटल से बड़ा कोई लायबिलिटी ही नहीं होता, क्योंकि प्रोवाइड कौन किया है? ओनर। तो कभी ना कभी तो ओनर को चुकाएंगे आप। सो दैट इज वाई कैपिटल वुड बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। समझ में आ रहा है जी? हाँ। फोर्थ क्या लिखे थे आप? लिख दीजिए एक बार प्लीज। कंजर्वेटिज्म क्या था? मैं कंजर्वेटिज्म अपने वर्ड्स में, हम आपको करंट एग्जांपल दें। कोई अब आपसे आने वाले 1 महीने में पूछे ना कितना आने वाला है, 40% बोलना, मिनिमम 40 आ जाएगा। मत बताना 95 एक्सपेक्ट कर रहे हो, मत बताना 100 आएगा, क्योंकि अगर नहीं आया तो आएगा तुम्हारे पास। आदमी का फितरत ही ऐसा है। क्या हुआ, तुम तो 100 बोला था। नेवर टेल देम अबाउट एन एंटिसिपेटेड गेन। कोई पेपर खराब गया है ना, उसको हाईलाइट कर दो। सारा टॉपर लोग यही करता है। देखें, पढ़ाई में जो भी अच्छा होगा नोटिस करना, वो आके ऐसे चिल्लाएगा मेरा ना 2 मार्क छूट गया, मेरा 2 मार्क छूट गया। भाई 2 ही मार्क तो छूटा है। वो पर इतना ग्लोरीफाई करेगा कि अरे फ्यूचर में नुकसान हो रहा है, मेरा 2 मार्क चला गया। जो 98 आने वाला है उसके बारे में शांत है।
कभी भी फ्यूचर के बारे में गेन नहीं लिखना, पर अगर फ्यूचर में लॉस होने वाला है, मान लो आज ही हो गया है, चलेगा, इसको लिखते हैं हम लोग। नहीं देखिए, प्रोबेबल इवेंट तो गेन भी हो सकता है, प्रोबेबल लॉस भी हो सकता है। बोल रहा है प्रोबेबल लॉस को रिकॉर्ड कर दो, पर प्रोबेबल गेन को रिकॉर्ड मत करना। सो वो एकदम ठीक बोली, प्रोबेबल इवेंट्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, पर प्रोबेबल इवेंट्स तो दो पार्ट में डिवाइड हो गए, प्रोबेबल गुड थिंग्स, प्रोबेबल बैड थिंग्स। बोल रहा है प्रोबेबल बैड थिंग्स रिकॉर्ड नाउ, बट प्रोबेबल गुड थिंग्स रिकॉर्ड व्हेन दे हैपन। नहीं सुने, सपोज पापा को, आपको, हम यही थे, मेरा बचपन में कंजर्वेटिज्म था ही नहीं। कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता था, एक स्टूडेंट ज्वाइन करता था ना, हम नाचने लग जाते थे, यस वन मोर स्टूडेंट, यस, मतलब एक एक स्टूडेंट के लिए हम जा जाके, मतलब बिलीव नहीं करेंगे कितना मेहनत किए। तो एक स्टूडेंट भी आता है ना, तो मेरे लिए बता रहे वाह, खाली फ़ोन पे बात हुआ है, ज्वाइन नहीं किया है, हम मान लिए हो गया। तो जब छोड़ेगा तो बहुत दुख होगा, तो मेरा पॉलिसी ही चेंज कर दिया, जब तक आप 3 क्लास करके अपने आप में सहमति ना लें, आप स्टूडेंट ही नहीं बने हैं, हम गिनेंगे ही नहीं एंटिसिपेटेड गेन। कोई चांस ही नहीं है कि हम मान लें कि कृपा मेरी स्टूडेंट बन गई है, सॉरी कृपा, हम ये मानेंगे जब कृपा 4 क्लास अटेंड कर लेंगी, तब इसका मतलब है कि वो मेरी स्टूडेंट है। जब वो बन जाएंगी स्टूडेंट, तब हम मानेंगे कि वो मेरी स्टूडेंट है। फ्यूचर में कोई मुनाफा होने वाला है, हम नहीं मानेंगे, है ना। कोई आपका छोटा भाई बहन है, कौन सी क्लास में? लिख दें उसका नाम, अच्छा जिया का भाई आएगा 3 साल बाद, आज ही लिख दो। नहीं, साइंस ले लिया तो है ना, साइंस छोड़ो, जरूरी थोड़ी ना ये मेरे पास ही पड़ेगा, हो सकता है कहीं और जाए। तो एग्जैक्टली समझ रहे हैं आप मेरा बात। आपका कोई है छोटा भाई बहन? बड़ा भाई है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कंजर्वेटिज्म थोड़ा सा अच्छे से समझना, लाइफ लेसन है और कुछ नहीं है। लिखिए, कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस दोनों लिखिएगा, दोनों है उसके नाम। Conservatism/prudence states that we only record anticipated losses। अच्छा, स्कूल में क्या हुआ ना, एक बच्चा से पूछा कंजर्वेटिज्म बताओ, पता है वो क्या बोल के आया? वी ओनली रिकॉर्ड लॉसेस, वी डोंट रिकॉर्ड प्रॉफिट्स। एक तो मेरा भी बेइज्जती होता है, तुम्हारा भी होता है। देखो बात समझो, नहीं कहीं बोला है लॉस लिखो प्रॉफिट मत लिखो, एंटिसिपेटेड लॉसेज लिखो, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट मत लिखो। अगर अभी लॉस हो रहा है वो भी लिखो, अभी प्रॉफिट हो रहा है वो भी लिखो, होने वाला प्रॉफिट मत लिखो, पर होने वाला लॉस लिख दो प्लीज। ये एंटिसिपेशन नहीं वर्ड यूज करेंगे तो सोचिए, अब तो पूरा कहानी बदल दी है। अगर आप बोल रहे हैं लॉस लिखो प्रॉफिट मत लिखो, ये थोड़ी ना कंजर्वेटिज्म बोल रहा है। कौन सा गिफ्ट? कौन सा थंडरबर्ड? चाबी पड़ा हुआ था गाड़ी में भाई? 5 मिनट दो, हम आ रहे हैं, 1 सेकंड रुको। क्लास के बीच में कैसे उठाएं बता? 5 मिनट दो ना हमको, 5 मिनट दो। सो कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस का बात हो रहा था ना, शायद लिखे नहीं हम लोग, लिखे हैं क्या? हाँ, वी ओनली रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड लॉसेज बट वी नेवर रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड गेन्स। It is only due to this concept, ये मैं लिख दे रहा हूं, आप इसको कॉपी करो, फिर अभी बात करेंगे इस पे। क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड एज लोअर ऑफ कॉस्ट और MRP। मैं आ रहा हूं, 2 मिनट दो, ये लोग बहुत पुराने बच्चे हैं। झूठ बोल रहा है।
तो ये लोगों का 2017 या नहीं 2020 में पास आउट है लोग, तो अब तो ये लोग बड़े बड़े हो गए, ग्रेजुएट शायद हो गए हैं, तो इनके साथ बाइक ट्रिप प्लान हुआ है भाई, ये कोलाघाट ही चले जाते हैं हम लोग। क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड लोअर ऑफ कॉस्ट और MRP विच एवर इज लोअर, आप वही मानेंगे। जैसे देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक बचा था 100 kg, याद है, इंटू 100 और इंटू 90 क्या होगा, लेकिन अगर ये 190 होता तो बोल रहा है जो भी लोअर होगा उस पर क्लोजिंग स्टॉक मापा जाएगा। वेरी गुड सर, तो भी पड़ा ही रहेगा क्लोजिंग स्टॉक। अगर नहीं बिकेगा तो अगले साल उसका वैल्यू 0 होगा। अभी क्या उसका वैल्यू 0 है? आर यू एक्सपेक्टिंग इट टू गेटिंग इन समथिंग इन रिटर्न? तब तो अभी 0 नहीं है। अभी मान ले 10 रुपए का, तो 10 पे लिख दे। सो 10 पे भी नहीं बिका, अब उसका वैल्यू कितना हो गया? 0। अब 0 पे रिकॉर्ड कर ले। क्लियर है? पर वैलिड क्वेश्चन है, तो इसीलिए आपके MCQ में ना पूछेगा, क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ NRV। NRV मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हम लोग MRP बोल देते हैं ताकि आपको याद रह जाए, पर एक्चुअली में लॉ जो है दैट इज अपॉन NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। वो भी लिख लीजिए शब्द। लास्ट फिर करते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। लिखिए, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस, अर्नब ये आपका पॉइंट है, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस which can be represented in monetary terms only those transactions that can be represented in monetary terms will be recorded बस, फुल स्टॉप। तो एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, अर्नव का यही क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट और नॉट, बट कैन यू मेजर इट इन मॉनेटरी टर्म्स? नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटेंसी। डेथ ऑफ ए ओनर, इंपॉर्टेंट इवेंट और नॉट, बट कैन यू गिव अ मॉनेटरी वैल्यू टू दैट? नॉट रिकॉर्डेड। उसकी वजह से कंपनी बंद हो सकती है, हाँ या ना, लेकिन तो भी आप उसको माप नहीं सकते, तो आप लिख नहीं पाएंगे। क्लियर है? सो ये कुछ बातें हैं, थोड़ा सा और पढ़ेंगे आज हम लोग। 5:45 है ना। सो 5 पॉइंट कौन कौन से हुए, थोड़ा फिर से बताइए मेरे को एक बार। गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, और नंबर 6 लिखिए, द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। The historical cost concept. सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये जो जगह है ना, ये मेरी नानी बाड़ी है, बहुत लोगों को नहीं पता है। सो दिस इज़ वेयर आई हैव बीन, मतलब बचपन में मैं यहीं पे खेला, पर मतलब नानी बाड़ी था ना। सो ये वाला जो था, मेरी मम्मी इधर एक्चुअली पली बड़ी है, तो अभी ये मेरा ट्यूशन सेंटर बन गया है। तो ये मेरा मम्मी पापा, मेरे नाना नानी का ड्राइंग रूम था, राइट हैंड साइड में जो था वो उनका बेडरूम था, और पीछे मेरी मम्मी का रूम था। सो अब वो बन गया है। पर पॉइंट क्यों है, मेरे नाना जी ने 1975 के आसपास में इसको 5 लाख रुपए में अक्वायर किया था, इस घर को। आज इसकी वैल्यूएशन अराउंड लगभग 40-50 लाख रुपए की है। अब सोच कर देखिए, मेरी मम्मी आज भी बैलेंस शीट में इसको 5 लाख रुपए ही लिखती है। सही करती है कि गलत करती है? सही करती है। बोल रहा है कि अकाउंट्स में दिन पर दिन इसका वैल्यू चेंज होता है, हर दिन थोड़ी ना बदलोगे। आज 5 लाख का है, कल 6 का होगा, परसों 7 का होगा, कभी 4 का भी हो सकता है।
हर दिन बदलें क्या? बोल रहे जब भी आप एसेट लोगे ना, जितना में आपने लिया है उतने पे रिकॉर्ड करो, मार्केट वैल्यू के बारे में भाड़ में जाए। आप में से यहाँ पे किसी के पेरेंट्स शेयर मार्केट से रिलेटेड हैं, ऐसे ही इन्वेस्टिंग करते हो, स्टॉक में कुछ इन्वेस्ट कर दिए हो? तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक स्टॉक लिया था मैम 60 रुपये का। उस स्टॉक का नाम है अडानी ग्रीन। ये मेरा फेवरेट स्टॉक है, बहुत कुछ मदद हुआ है इस स्टॉक की वजह से। आज ये मैम ये लगभग 1800 रुपये का है। मैंने इसको 2018-19 में लिया था, और अच्छी क्वांटिटी में लिया था, नहीं पता था कि इतना बढ़ेगा। सच बोल रहा है, इतनी कि मैं बहुत बड़ा राकेश झुनझुन हूँ, तुक्का था पूरा। तो 60 रुपये का शेयर मैम, आप ग्रोथ रेट देखें क्या है, 1800 रुपया हो गया। आज भी मेरी बुक्स में गेस करिए कितने का है, 60 रुपये का। अरे स्टॉक मार्केट तो पता है हर मिनट बदलता है, तो मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रोज चेंज करूँ, एक आदमी रखना पड़ जाएगा। इस 60 को 61 लिख, नहीं सॉरी 62 हो गया अब, अच्छा फिर 48 पे आ गया है। हर मिनट थोड़ी ना चेंज कर पाऊंगा। बोल रहा है जब भी आप एसेट परचेज करोगे ना, अब याद रखना आप उस पर ही रिकॉर्ड करोगे जितने में आप उसको अक्वायर कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसीलिए सर जब गाड़ी लेते हैं ना, एक बोलते हैं एक्स शोरूम और एक बोलते हैं ऑन रोड। मैटर ऑन रोड करता है, गाड़ी कितने की पड़ी। घर लेते हैं सर, मान लीजिए 1 करोड़ का घर है, 10 लाख की रजिस्ट्रेशन है, घर एक 10 का मानते हैं। इनफैक्ट वो भी नहीं करते, पता है 40 लाख का इंटीरियर कराओगे तो 1.5 करोड़ का घर पड़ेगा। है ना में जवाब दो, प्रॉपर्टी रेट तो बढ़ते ही हैं। अब मान लो 1.5 करोड़ का घर 4 करोड़ का हो गया है, तो आप 4 करोड़ लिखोगे कि 1.5 ही लिखोगे? 1.5 ही लिखोगे। पर भैया बिका तो 4 में, जब बिकेगा तो लिख देना। फ्यूचर गेन को तो रिकॉर्ड आज करने के लिए पहले ही एक तो कन्वेंशन आ चुका है। बेच दिए क्या? नहीं बेचे ना, बेचोगे कभी, आज तो नहीं बेचे हो, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना है सब कुछ। लिखिए, ऑल एसेट्स will be recorded at their original values. I.E, that is at the cost they were acquired at. इस कन्वेंशन का असली मजा पता है किसके साथ है? दादी नानी लोग के साथ बैठ के उन लोगों का गहना के बारे में बात करना। ये तो हमने 10,000 में लिया था, आज ये 1.5 करोड़ का है। ये जो रानी हार है ना, ये तो तेरी मम्मी के ससुराल से आया, ये अच्छा नहीं था। ये वाला मेरा वाला जो हमने चढ़ाया वो बेटर है ना। आपने सुना होगा ऐसा कोई कॉन्वर्सेशन, एटलीस्ट हमारे यहाँ तो बहुत कॉमन है ये सब। ये वाला जो तुम्हारी मम्मी की साइड से आया था ना, उसका वैल्यू कम है, हमने जो चढ़ाया था उसका वैल्यू ज़्यादा है। हमने इसको 5,000 में लिया था, आज देखो कितने का हो गया है। मैटर नहीं करता, बुक्स में तो 5,000 का ही लिखना होता। यू अक्वायर्ड इट एट विच कॉस्ट, दैट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज वॉट वी आर लुकिंग एट, दैट इज वॉट इज रेलेवेंट। येस, व्हेन यू गो सेल इट देन यू रिकॉर्ड द प्रॉफिट। अभी मत लिखो, एक्सेप्टेबल है। अब बस मैं आपके साथ 5 मिनट और बात करूंगा, 5-10 मिनट और बात करूंगा रिगार्डिंग अ फ्यू टर्म्स विच आई वॉन्ट यू टू नो, डेबिट एंड क्रेडिट। बस याद रखिए, डेबिट प्लस है और क्रेडिट माइनस है। और मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं आज 3 कॉन्सेप्ट से। एक जिसका नाम हम रखेंगे रियल अकाउंट्स, एक दूसरा पर्सनल अकाउंट्स, और तीसरा नॉमिनल अकाउंट्स। आज अब अपनी लाइफ का पहला जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक? चलिए, व्योम सर, रियल अकाउंट्स का मतलब वो है जिन जिन चीज़ों का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। आप मेरे को बताएं सर, इस रूम में किस चीज़ का फिजिकल एग्जिस्टेंस है? फर्नीचर, बोर्ड,
एसी, कैमरा, है ना, ये सारे एसेट्स हैं। कैश, कैश कैश फिजिकल एग्जिस्टेंस, है ना, तो ये सारे एसेट्स हैं। आप मेरे को एक बात बताएंगे, एक एसेट अगर आएगा और उसके बदले दूसरा एसेट चला जाएगा, कौन सा एसेट प्लस होगा, कौन सा एसेट माइनस होगा? बहुत स्टूपिड क्वेश्चन आई नो, पर तो भी बोलिए। जो आएगा वो प्लस होगा, तो वो जाएगा वो माइनस होगा, सिंपल सा बात है। वहां से इन्होंने रूल बना दिया, गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन। दुनिया का वन ऑफ द बिगर स्कैम्स ही यही है, आया तो डेबिट करो, गया तो क्रेडिट करो। मतलब आया तो प्लस करो, गया तो माइनस करो। भैया गोल्डन रूल नहीं है, ये तो क्लास 2 में सिखाया गया था। कोई चीज़ अगर बढ़ जाए तो ऐड होता है, कोई चीज़ अगर घट जाए वो माइनस होता है। पर ये रूल एप्लीकेबल सिर्फ किस चीज़ों के लिए है? थिंग्स के लिए है। ये रूल बाकियों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर देखिए, सोचिए ना, बाहर ना एलेना खड़ी हैं और मान लीजिए 5,000 रुपये का फर्नीचर मैं उनसे खरीद रहा हूँ, तो वो फर्नीचर मेरी फर्म में आ रहा है और वो 5,000 कैश में उनको दे रहा हूँ। मैं क्या प्लस करूँगा, क्या माइनस करूँगा? फर्नीचर प्लस करूँगा और कैश माइनस करूँगा। बहुत इजी हो गया सबके लिए, जिनका अकाउंट्स नहीं है वो भी समझ जाएंगे। हम चाहते हैं ये डरे और अकाउंट्स वालों को इज्जत दे कि हम कुछ बड़ा कर रहे हैं, प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बोला प्लस मत लिखो, क्या लिखो पता है? फर्नीचर अकाउंट डॉट 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 डेबिट। क्यों? बस मन किया, कोई लॉजिक नहीं है इस बात में, बस मन किया। और इसको क्रेडिट भी नहीं लिखो, नहीं तो समझ जाएगा ये लोग। टू कैश, टू का मतलब क्रेडिट कर दो। मतलब अगर आप कोई चीज माइनस करना चाहते हो उसके आगे टू लिखना होगा। क्यों? बस मन किया, टफ बनाने के लिए, रादर छुपाने के लिए दुनिया से। हमको लगता है सारी फील्ड ऑफ नॉलेज में ये है कि एनीबडी हु जॉइन्स द फ्रेटर्निटी विल ओनली नो व्हाट इज गोइंग ऑन, एनीबडी आउटसाइड द फ्रेटर्निटी विल नेवर नो व्हाट इज गोइंग ऑन। अगर आप अकाउंट्स नहीं पढ़े हैं और किसी को जाके ये बोलते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, वो कभी नहीं समझ पाएगा फर्नीचर आया कैश गया। संभव ही नहीं है उसके लिए ये डिकोड करना कि फर्नीचर आया कैश गया। लेकिन ओरिजिनली यही था कि भाई देखो, फर्नीचर प्लस करो, कैश माइनस करो। अब इसको क्या करना है? थोड़ा कैमोफ्लेज करना है, सो दैट इट लुक्स लाइक समथिंग कॉल्ड अ जर्नल एंट्री। ऑपोजिट सोचिए ना, मेरे को नहीं लेना है, मेरे को अपना फर्नीचर बेचना है, तो मैं फर्नीचर लिया, बाहर अलेना खड़ी है, कैश आया, फर्नीचर गया, क्या जर्नल एंट्री बैठेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। जिनका 9-10 में अकाउंट था वो शायद ये देखें जर्नल एंट्री, है ना, आपका ये था। रियल अकाउंट का रूल ही यही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट बी वेरी केयरफुल, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू पीपल एंड एक्टिविटीज। ये लोग हैं और ये जो है वो एक्टिविटीज हैं। लोगों का रूल अलग है, बहुत सॉलिड रूल है। आपको कैसा लग रहा है? किसी से पैसा आने वाला है, उसका वाइब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो डेटर को प्लस करो। डेटर मतलब देखिए, मैं ना जब भी पढ़ाया हूं मैं ऐसे सीखा हूं, मेरे को तो ये सब नहीं समझ में आता था, सच बता रहा हूं, मैं अपना माथा लगाता था। अच्छे लोग कौन होते हैं? हु आर गुड पीपल। क्या नाम बोले आप? कनिष्का। कनिष्का, डिफाइन गुड पीपल। हु आर ऑनेस्ट, जो धोखा नहीं देते हैं। आपके लिए आज से ये परिभाषा बदल जाएगा, जिससे पैसा आने का है वो अच्छे लोग हैं, जिससे पैसा मतलब जिनको आप पैसा देंगे वो बुरे लोग हैं। आप सब मेरे लिए कौन है? आप सब के लिए मैं कौन हूं? यू हैव टू पे ना। सिंपल रूल है, पैसा आने को है गुड फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग, पैसा जाने को है नेगेटिव फीलिंग। तो क्या करना चाहिए? डेटर्स को क्या करना चाहिए? डेटर्स आर पीपल जिनसे पैसा आएगा, और प्लस करना है। क्रेडिटर्स को बोला थोड़ा घुमाते,
नहीं तो सबको पता चल जाएगा। डेटर को डेबिट करेंगे, क्रेडिटर को, भैया ये तो क्या बोल रहा है, और इजी कर दिया आप। डेबिट डेटर, क्रेडिट क्रेडिटर, सेम सेम, तो और टेस्ट और चेंज करते हैं, इसका नाम बदल देते हैं, बोलते हैं डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। क्या गेम खेल रहा है आप लोग के साथ, अब बस समझ गए ना तो आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। आप हर एक चीज को सोचेंगे, ओ ये तुम्हारा इंटेंशन था। टेल मी, इफ आई सेल यू गुड्स एंड आई डोंट टेक मनी फ्रॉम यू, हु आर यू फॉर मी, डेटर और क्रेडिटर? मैं आपको सामान बेचा, मैंने बोला कोई बात नहीं कृपा बाद में देना, तो आप मेरे लिए आप अच्छे इंसान हो कि बुरे इंसान? अच्छा इंसान, पैसा आने का है मेरे को उससे। अब इस सिचुएशन में बताइए, जो बेनिफिट ऑफ नॉन पेमेंट में दिया उनको, कौन रिसीव किया है ये बेनिफिट? डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। अरे सीधा सीधी बोलो, जिससे पैसा आने का है, क्योंकि जो बेनिफिट लिया है, पैसा नहीं दिया, वह भाई वही तो पैसा देगा। अगर आप बुक्स खोलेंगे तो डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर नहीं है। जब आप किताब पढ़ेंगे उसमें लिखा है डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट। फॉर कृपा, who has given her this benefit of non payment, so I am her creditor। उसके लिए मैं कौन हूं, अच्छा कि बुरा? फॉर कृपा she has to pay money to me, who is रोहन खन्ना? bad person। सोचिए ना, सपोज यू आर इन डायर नीड ऑफ मनी एंड यू गो टू समवन एंड से प्लीज लोन दो यार बैंक, आई विल रीपे लेटर। बैंक बीइंग सच अ नाइस बैंक गिव्स यू गुड अमाउंट ऑफ मनी, इज इट एक्चुअली अ गुड पर्सन? फ्री में कोई पैसा नहीं दे रहा है, ब्याज लगेगा और वो पैसा भी वापस चुकाना पड़ेगा। एनीबडी यू हैव टू पे मनी टू, यू विल क्रेडिट हिम। एनीबडी यू विल गेट मनी फ्रॉम, you will make him a debtor. Let's change the situation now. Alena is again standing at the door with furniture and I say I want furniture. तो furniture आया कि नहीं? Furniture debit what comes in? Furniture plus. पर सॉरी अलेना मेरे पास पैसे नहीं है, आई प्रॉमिस मैं तुमको 5 महीने बाद दे दूंगा। एंड अलेना इतनी अच्छी बोली कोई बात नहीं भैया आप आराम से यूज करिए, बाद में दे दीजिएगा। सच बताइए अलेना मेरे लिए अच्छी है? तो हम करेंगे अलेना माइनस। पर एग्जाम में कैसे लिखेंगे? माइनस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2 से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? उल्टा सोचोगे, वहीं वो बाहर खड़ी है बेचारी, मैं बोला यार ये कैमरा है मैं बेचना चाहता हूं, तो मेरा कैमरा आ रहा है बिजनेस में कि जा रहा है? तो 2 कैमरा माइनस। पर अलेना बोल रही है भैया मेरे पास पैसे नहीं है। मैं भी बोला कोई बात नहीं अलेना 5 महीने बाद दे देना। अब अलेना मेरे लिए अच्छी इंसान की बुरी इंसान? पैसा आने को है, तो ए अकाउंट डेबिट, 2 कैमरा। आप सारा चीज कर पाएंगे अगर आप कॉमन सेंस समझ पाते हैं। ये रूल किसके लिए है? सबके लिए है कि खाली थिंग्स के लिए? और ये रूल किसके लिए है? पीपल के लिए। पीपल 2 प्रकार के ही होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं अकाउंट्स में, अच्छे या बुरे। अच्छे कौन है? पैसा आने वाला है जिनसे। बुरे कौन है? जिनको हमको पैसे देने हैं। वॉट आई ओ टू पीपल is what is a liability. If I am going to get money from someone, it is an asset. That is why I want to introduce you to the first journal entry of every single book, every single sum. What do you think would that be? What is the first transaction that every business will have? Starting of a business. Cash? क्या? Cash? Correct, very good. Cash या commenced business with cash. Owner has introduced money into the business. Remember books किसका है? RKC का। कौन से कॉन्सेप्ट से ये आप जानते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है ना। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से पैसे किसने दिए हैं? ओनर ने। और यहां पर क्या आया है? वो अच्छा कैश। कैश क्या टच कर सकते हैं?
टेंजिबल है कि नहीं है? तो रूल किसका लगेगा? रियल का। रियल का रूल क्या था? थिंग्स का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट। तो फर्म में कैश आया है कि गया है? तो कैश अकाउंट। इसके लिए ओनर इंसान है, अच्छा कि बुरा? सबसे बुरा। कौन सा कॉन्सेप्ट? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आप समझ रहे हैं? मैं आपको बोला था ना, ये 5-7 चीजें डायरेक्टली काम नहीं आएंगी, पर इनके बिना अकाउंट समझ में नहीं आएगा। जब तक आप अपना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे कि पैसा लगाया कौन और बुक्स किसकी है, तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि ओनर लायबिलिटी है, और लायबिलिटी मतलब प्लस की माइनस। तो यहां लिखेंगे टू कैपिटल। दैट इज वाई द फर्स्ट एंट्री दैट वी डू इज कैश टू कैपिटल। ये आपने शायद 9-10 में किया है। क्लियर है? क्या रूल है फिर से बताओ तो रियल का? जिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर है? अब प्रॉब्लम क्या आप समझ रहे हैं? ये पर्सनल अकाउंट वाला में मेरा भी प्रॉब्लम क्या हुआ, हमने बच्चा को नहीं बताया कि स्कूल में नहीं बोलना। स्कूल में जाके पता है क्या बोलता है? पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ। बोलता है मैम देयर आर 2 टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट, गुड पीपल एंड बैड पीपल। नहीं यार, मतलब हमको वो 3 इडियट्स वाला सीन याद आ जाता है। देखें वो 3 इडियट्स वाला सीन, वो बोलता है ना मशीन क्या है? वो बोलता है जिप है, एनीथिंग दैट मेक्स योर वर्क ईजियर इज अ मशीन। तो आप लोगों में से कौन कौन मेरा ओरिएंटेशन क्लास देखा था, किया होगा, आया होगा? तो याद है आई वाज टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ अ वाइज पर्सन, जहाँ पे एजुकेशन का मेन कॉन्सेप्ट है। मेरा ये कहाँ से आया कॉन्सेप्ट जानते हैं? 3 इडियट्स वाला मूवी से। मैं आपको सीन बाय सीन बता सकता हूँ कि वो लोग जानबूझ के ये 4 चीज़ इन्वॉल्व किया है। क्यूरियोसिटी, डू रिमेंबर? क्यूरियोसिटी, सिंप्लीफिकेशन, ऑब्जर्वेशन और पर्सनैलिटी। ये 4 चीज़ इज अ मार्क ऑफ अ वाइज पर्सन। कभी नोटिस करिए, आई नो थोड़ा डिग्रेस कर रहा हूँ। 3 इडियट्स मूवी जो एक्चुअली है ना, वो मेनली 2 लोगों के ऊपर है। एक है हमारे चतुर और एक है हमारे रेंचो, रणछोड़ दास, श्यामल दास छाछड़, अगर आपको याद हो। ये सक्सेसफुल है, हाँ या ना? ये महान है, और ये बेचारे राजू और फरहान कंफ्यूज्ड हैं। ये स्टोरी एक्चुअली इसी के ऊपर है, इसीलिए ये इतनी हिट हुई है। जहां पर ये दिखाया कि ये कर भी, रट कर भी आदमी सक्सेसफुल तो जरूर बनेगा, पर कभी खुश नहीं रह पाएगा। और ये भी दिखाया गया है कि अगर आदमी अपना विवेक जगा लेता है, विजडम को क्रिएट कर लेता है, तो वो पैसा भी कमाएगा और उद्धार भी लाएगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अब वो CSOP सीन बाय सीन है। पहला है क्यूरियोसिटी। डू यू रिमेंबर जब वो प्रिंसिपल आते हैं और बोलते हैं कि ये है एस्ट्रोनॉट्स पेन, और वो क्या पूछता है? पेंसिल क्यों यूज नहीं किए? एंड इट वाज नॉट कि चैलेंजिंग वे में पूछा, जेन्युइन क्यूरियोसिटी। और वो बोलता भी है कि आई विल गेट बैक टू यू, और लास्ट में बताता है कि निप टूट जाएगा तो आंख में जा सकता है ना? आप अगर मूवी देखे हैं तो पहला सीन में क्यूरियोसिटी दिखाता है। तो ये ना, मैं नहीं, मेरा इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। बहुत कम लोग को पता है, 28 साल की उम्र में हमको जोश चढ़ा था IAS देने का। तो हम प्रीलिम्स क्लियर किए थे, ठीक है, मेंस तक क्लियर किए थे, इंटरव्यू में फेल हो गए थे। उसके बाद हम बोले यार मेरे बस का नहीं है फिर से वापस पढ़ना, क्योंकि यहाँ क्या है ना, जैसे CS में आप फाउंडेशन क्लियर करते हैं, इंटर फेल हो जाते हैं, तो आप फाउंडेशन फिर से नहीं देना होता है। यहाँ पर आप तीसरे पड़ाव में पहुँचेंगे अगर, आपको फिर से चालू करना पड़ेगा, आपको फिर से वापस आपको एंट्रेंस देना है, मेंस देना है, फिर एग्जाम देना है, और बहुत मेहनत है। तो हमारे मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत ही मोटिवेटेड हूँ एक सर से, अवध ओझा सर से। ये उनका कॉन्सेप्ट था जो हम लोग को पढ़ाते थे, CSOP। तो मैं बोला कि मैं भी पढ़ा सकता हूँ ये अपने स्टूडेंट्स को, जो मैं सीखा हूँ। तो क्यूरियोसिटी सबसे पहला एग्जाम्पल वही था। दूसरा याद करिए, सिंप्लिसिटी, वही सीन जो मैं रेफर कर रहा हूँ। उससे पूछा मशीन एक्सप्लेन करो, और वो क्या बोला, एक तो बड़ा सा डेफिनेशन,
वो क्या बोला, जो भी चीज मेरा काम आसान करके दे दे वो मशीन है। सेकंड, थर्ड थिंग था ऑब्जर्वेशन। ये कहां पर आपको सीन दिखेगा, जब वो करीना कपूर अपने फियांसे के साथ उधर होती है और वो फट से पकड़ लेता है, तुमको देखना है ये तुम कि क्या होगा, और वो बोलता है अरे इसकी 5 लाख की घड़ी गायब हो गई। ही ऑब्जर्व्ड कि ये आदमी खाली प्राइस टैग देखता है, ऑब्जर्वेशन। पर्सनैलिटी, जब वो पकड़ा जाता है शादी में फ्री में खाते समय, तो बोलते हैं हम साइंस की तरफ से हैं, बैटरी जो है मेरा वो बना रहे हैं हम लोग, जो शादियों से हम एनर्जी ड्रेन करेंगे। सो द मूवी इज सच अ बिग सक्सेस बिकॉज इट फोकसेस ऑन दस 4 थिंग्स, है ना। तो जो मैं बोल रहा था, स्कूल में जाकर अगर आप बोलेंगे 2 प्रकार के लोग थे, सबसे पहले वो आप पे हंसेंगे, फिर मेरे पे हंसेंगे। देखिए मेरे पे हंसे, मेरे को ना अब आदत हो गई है, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको वो ही बोले कि आपको आता नहीं है। तो आप उनको उनका आंसर भी दो, अरे जहां चतुर बनना है वहां चतुर बनो, और जहां रैंचो बनना है वहां रैंचो बनो। पर चतुर लोग के पास ये ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ चतुर ही बन सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर हमसे कभी डेफिनेशन मांगा, हम बोलेंगे डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, मन में सोचेंगे अच्छे लोग, सिंप्लीफाई करेंगे, पैसा आने को है, क्रेडिट करेंगे द गिवर ऑफ बेनिफिट। याद रखने के लिए अगर चाहिए ताकि याद रह जाए, सारा गोल्डन रूल्स में CG कॉमन है, क्रेडिट द गिवर, व्हाट गोज आउट। तो अगर ये याद नहीं रह पा रहा है, क्योंकि एक है जो समझ गया उसको तो जरूरत नहीं है ना लर्न करने का, पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है 3 मार्क का, गिव द गोल्डन रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, तब आप नहीं बोल सकते कुछ आया तो प्लस करते हैं, कुछ गया तो माइनस करते हैं। आपको एग्जैक्ट गोल्डन रूल देना पड़ेगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट। याद रखने के लिए रखिएगा, C के साथ G आता है। लास्ट वाला थोड़ा डिबेटेबल है, देखिए फिर खत्म कर देंगे क्लास कि अभी करते खत्म। डेबिट व्हाट कम्स इन प्लस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट प्लस, डेबिट व्हाट कम्स इन प्लस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट माइनस। लास्ट वाला में आप मेरे से चिढ़ जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में ना एक्टिविटी आती है मैम, जिन चीजों को आप छू नहीं सकते। इंटेंजिबल मतलब एक्टिविटी बोलिए, इंटेंजिबल में ना बच्चा फिर एसेट पे चला जाता है। हमको एसेट्स के बारे में बात नहीं करना है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैम कैन यू टच द फीस दैट यू गिव मी, थिंक अबाउट इट। हाँ, यू टच द कैश, सोच कर देखिए। When you pay the electricity bill, God forbid can you touch electricity? मत करिएगा। Yes, हाँ, you touch the cash. When you say you are going shopping, can you touch shopping? You can touch the goods that you bought. An activity does not have a physical existence. Can you touch traveling? Can you touch transport? You can touch the car that you are traveling in. How can you touch an activity? Can you touch the salary that you give to your माशी जो घर पे आती हैं? You are giving cash. What are you touching? The salary or cash? Cash ना. पर there is another account involved here, salary. What are you giving? Cash. For what? For salary, service. What is that service called? Salary. Suppose you took the service in the name of advertisement. आपने ऐड दिया है कहीं पर. So what went out? Cash. But for what? For advertisement, for a service. You are paying rent to your landlord. Can you touch the rent? You can touch the cash that you pay. Rent तो भैया एक्टिविटी है। तो 2 प्रकार की एक्टिविटी होती हैं, इनकम। मैं बस आपको रिकॉल कराना चाहता हूं कि मैंने आपसे झूठ नहीं बोला था। ये सारे एसेट्स हैं, हाँ या ना? जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो एसेट है। ये कौन है? एसेट। ये कौन है? लाइबिलिटी। एसेट, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। 3 गोल्डन रूल में 4 चीज ही है। पूरे अकाउंट्स में सिर्फ 4 चीज है। जिस दिन आप ये समझ गए, आपको अकाउंट से मोहब्बत पक्का है। पर इनकम और एक्सपेंसेस में अभी झगड़ा होगा। अभी तक वाइब कैसा है? अच्छी चीजें प्लस हो रही हैं, एसेट आए तो प्लस,
एसेट जाए तो, अच्छे लोग आए तो, बुरे लोग आए तो अच्छी चीजें प्लस होती हैं, बुरी चीजें माइनस होती हैं। यहां पे अब आप चिढ़िएगा मत, इनकम माइनस करना है, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम और डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। सारे नुकसान प्लस करो, सारी इनकम्स माइनस करो। काश आप कृपा का चेहरा देख पाते। अभी वो बोल रही ये क्या हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस हमको इंडिकेशन दे रहा है गेन तो अच्छा है। आपका जो रैशनल है ना, वो आपको बोल रहा है ये गलत लिख रहे हैं तुम्हारे टीचर, उनको नहीं आता है। तुम उनको बोलो गलती हो गया उनसे, नहीं नहीं सही आता है हमको कसम से, ये सही है। क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। गेन्स एंड इनकम को क्रेडिट इसलिए किया जाता है कि उसी कारण से, बेटर एग्जाम्पल, मैम आपका कोई भाई है, ब्रदर है ना, तो राखी में पैसा वैसा मिलता है, रखने मिलता है। हाँ, बिजनेस भी वही रो रहा है। सारा इनकम जो आरकेसी का है ना, देखो हम अभी रखते हैं इधर, ये देखो आज का फीस कलेक्शन है, ये आरकेसी को दे दिया, क्योंकि मेरे को तो कोई देता ही नहीं है, हमको तो आरकेसी को देता है। ये आरकेसी क्या बोलेगा, ये सब उसके लिए क्या है, उसका है, किसका है, मेरा है। सारा इनकम आरकेसी का, आरकेसी के लिए मेरे प्रति लाइबिलिटी है। एवरी सिंगल इनकम दैट यू हैव गिवन टू आर खन्ना सेंटर फॉर एक्सीलेंस belongs to Rohin Khanna. He is only collecting on my behalf. Every single income, every single time. मेरा ना दूसरा में मत लीजिएगा, मेरा शादी का वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, लास्ट बैच को भी दिखाया था। मेरे रिसेप्शन पे मेरा मुंह देखने लायक है। मेरी वाइफ हमसे 2 दिन बात नहीं की, बोली तुम इतने उदास क्यों थे अपनी शादी पे, नहीं करना था तो बना कर देते। वी हैव डेटेड फॉर मोर देन 12 years, स्कूल टाइम से, ठीक है। उसके बाद वो रिसेप्शन पे, अब हम उसको कैसे बताएं कि जितना 21,000 51,000 के लिफाफे आ रहे थे वो सारी मेरे मम्मी पापा के पास जाने वाले थे। जितना बड़ा लिफाफा आता था उतना ज़्यादा दुख होता था। 500 एक आधा दुख नहीं होता था, पर कोई बहुत क्लोज रिलेटिव आके जब लिफाफा देके जाता था ना, मेरा मुंह देखने लायक था। इतना पैसा मेरी शादी पे हमको नहीं मिल रहा। एवरी सिंगल इनकम दैट आई रिसीव वॉज अ लाइबिलिटी। पर हम भी डेढ़ होशियार है, सारा बिल मम्मी पापा से ही पे करवाए। जब इनकम आपका तो खर्चे भी आपके, हम एसेट बनाएंगे आपको। तो जब आया वो सैटरडे क्लब में बिल लेकर, हम बोला हमको क्यों दे रहे हो, सारा इनकम किसका, मम्मी पापा का, तो खर्चा भी उनका ना। ये कैसा स्कैम चला रहे हो यार, सारा इनकम आपका, सारा खर्चा मेरा, ये तो पनिशमेंट है। फिर अगर इनकम आपके हैं तो खर्चे भी आपके हैं। तो बिजनेस क्या बोल रहा है, यहां से जो जो पैसे आएंगे मैं रोहिन खन्ना को दूंगा, पर जब मेरे को खर्चे करने होंगे तो मैं रोहिन खन्ना से ही मांगूंगा। जब मेरे को सैलरी देनी होगी तो मैं खर्चा रोहिन खन्ना से ही लूंगा। जब मेरे को इनकम मिलेगी तो मैं रोहिन खन्ना को लायबिलिटी मानूंगा। फेयर इनफ, कोई अनफेयर बात तो नहीं है। देखो मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ अनफेयर है। एवरी सिंगल टाइम यू डू अ रिचार्ज ऑफ जियो, व्हाट डज रिलायंस थिंक, वाओ 900 रुपये आए हैं, पर ये मेरे नहीं है, ये मुकेश बाबू के हैं। तो वो क्रेडिट करता है उस इनकम को। और जब भी उनको रेंट देना है, सैलरी देना है, गुड्स खरीदना है, मुकेश सर पैसे लगेंगे सर, वो हर बार ओनर को डेटर बनाता है। बहुत लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि इनकम क्रेडिट क्यों होता है और एक्सपेंस डेबिट क्यों होता है, क्योंकि ऑपोजिट हो गया ना। अभी तक नॉर्मल चल रहा था, आया तो प्लस, गया तो माइनस। एसेट आया, डेटर आया प्लस, लायबिलिटी आया माइनस, सब कुछ सही चल रहा था। यहां पे उल्टा क्यों, आप समझिए पर्सपेक्टिव किसका है। पर्सपेक्टिव बिजनेस का है। बिजनेस बोल रहा है एवरी सिंगल इनकम, फॉर एग्जांपल आज से आप मेरे को फीस नहीं देंगे, मेरे बिहाफ पर कौशल को देंगे। ऐसा मजाक कर रहे हैं, हाँ, मतलब ये नहीं कि सारा फीस उसी में ट्रांसफर। आज से आप फीस कौशल को देंगे, ही इज माई कलेक्शन एजेंट। तो सर जितना भी फीस है वो आपका हो गया कि आप मेरे को दोगे, तो आप सब मेरे को लायबिलिटी मानोगे ना। पर आरकेसी के सारे खर्चे भी फिर आप ही देख रहे हो, तो सारे उसी में से निकालोगे।
दैट इज द आइडिया बिहाइंड द गोल्डन रूल्स. मैं फिर बोल रहा हूँ, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज योर फर्स्ट क्लास. वी विल कंसिडर डे 1 एज ऑन वेंसडे. ट्यूसडे को आपका ईको क्लास प्लान्ड था, पर ट्यूसडे को पहला नवरात्रि है और हमारे यहाँ पे ना कीर्तन होता है. ये वाला जो जगह मैं बोला था ना नानी बाड़ी, तो उनका लेगेसी है. फर्स्ट नवरात्रि का कीर्तन हमेशा यहीं पे होता है, तो उस दिन शायद क्लास. और वैसे भी हमारा शेड्यूल्ड है नहीं ट्यूसडे को, सिर्फ CBSE इकोनॉमिक्स है जो हम लोग बाद में चालू करेंगे वेडनेसडे से. नाउ यू गाइस डिसाइड, सेम लाइक व्हाट यू डिड. डू यू वांट अ क्लास टुमारो और डू यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम वेडनेसडे? मैं फ्री हूँ इसलिए बोल रहा हूँ. कल फॉर अकाउंट्स की इको करना है, कल इको कि नेक्स्ट संडे से स्टार्ट करना है? इको नेक्स्ट संडे से स्टार्ट करते हैं, अकाउंट चालू करते हैं. एक और कल अकाउंट्स क्लास कर दे 12:30. यही सब डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ देखते हैं बना नहीं बना. शाम को संडे को बाहर नहीं जाएगा, 12:30 बजे उठे. फॉर दैट इवन इफ यू गेट अप एट 11 o'clock, कितना. अच्छा एक बात है, 4 बजे भी सोने जाएगा अगर, तो 11 बजे भी उठे अगर, देख अगर ट्राई करा सके तो 12:30 एक बार कर लेते हैं कॉल, एक और क्लास. ऐसे ही रैंडम क्लासेस हैं. देखिए ये आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए. द होल आइडिया दैट आई ऑलवेज से दैट अगर आप किसी को किसी चीज़ में पढ़ाना चाहते हो, आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि पढ़ाना है. आपका टारगेट होना चाहिए कि आप उसको इंटरेस्टेड कर दो, वो खुद पढ़ लेगा, है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे को बताइए, आपको स्पोर्ट में है, क्रिकेट में, आपको किसी को कोचिंग देना पड़ा कि खुद ही बैट लेके 4 बजे खुद ही उतर जाते थे? द मोमेंट यू बिकम इंटरेस्टेड इन समथिंग ना, यू डोंट नीड एनी हेल्प फ्रॉम एनीवन. एक बच्ची है, हमको नहीं पता था, उसका इंस्टाग्राम पे हम उसको जब फॉलो किए, उसका ना मतलब 12-13 हज़ार फॉलोअर है. और वो करती क्या मालूम है? वो मेकअप वीडियो बनाती हैं. क्या होता है ना, जी गेट रेडी विथ मी, हाँ GRWM वाले वीडियो बनाती हैं. अब देखिए उसको कोई सिखाया नहीं, उसको इंटरेस्ट आया और वो उसमें एक्सेल कर रही हैं. अच्छा ही कर रही हैं, हम जज क्यों करें, है ना. 13,000-15,000 फॉलोअर एट हर एज, एंड इफ शी इज कंसिस्टेंट एंड शी इज गुड एट इट, इट इज गोइंग टू डू वेरी वेल. और मैं ये आज से नहीं बोल रहा हूँ, मैं 3 साल से बोल रहा हूँ. सोशल मीडिया को अगर आप ढंग से यूटिलाइज नहीं करेंगे, आप 5 साल के अंदर अपने बिजनेस में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. अगर सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट नहीं होता तो खाली सोचिए, नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया क्रिएटर्स को अवार्ड्स नहीं दे रहा होता. बीजेपी अपना आधा कैंपेन सोशल मीडिया से चला रहा है. आर यू गेटिंग एड्स फ्रॉम बीजेपी इन इंस्टाग्राम कि वोट फॉर अस? दिस इज द प्योरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द चेंज यू विल बी एक्सटिंक्ट. अगर आप लोग में से कोई सोच रहा है कि फ्यूचर में कुछ करेंगे, सोशल मीडिया हैंडल को मतलब आप इंपॉर्टेंस दें. एंड व्हेन आई से सोशल मीडिया, इट्स नॉट इंस्टाग्राम ओनली. इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब सोशल मीडिया के कैटेगरी में जाता है. सो दैट इज वाई ट्राई टू मतलब डेवलप एन इंटरेस्ट इन अकाउंटेंसी. मतलब मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, 3 महीने बाद शायद आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़े. अगर आप खुद इंटरेस्टेड हो गए ना, तो मेरा प्राउडेस्ट मोमेंट वो होता है जब मेरे को बच्चा बोलता है कि आपकी मेरे को ज़रूरत नहीं है ना. इसका मतलब मैं तो काम ठीक किया ना, जो मेरे लिए, जिसके लिए आप आए थे वो तो काम हो ही गया. तो वी विल मीट टुमारो एट 12:30. जस्ट रीड एंड कम, नथिंग होमवर्क, नथिंग, कुछ नहीं. जो पढ़े हैं बस पढ़ के आना, दैट्स इट. ठीक है. ये रिकॉर्डिंग में अपलोड भी कर दूंगा इन केस एनीबडी वांट्स टू व्यू दिस अगेन.